let's talk about Bacha or Honey Singh and Raftaar, like this wave that came first. I gave up a lot of my peace of mind. I sacrificed my family time, relationships for sure, you know. What is your proudest moment, bro, so far? When I got my mom dad to see my show in Delhi, like in front of like 3,000 people, and my mom cried for the whole set. है संगीत बदलेगा दुनिया. This is the chorus from Samaj from Bhram Deluxe by Prabh Deep. ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जिसको करने के लिए मुझे 4 साल लग गए. 2019 में मैं इंडिया आया यूएसए से और मैं स्ट्रगल कर रहा था कि यार इंडिया में कौन सा ऐसा म्यूजिक है दैट आई कैन रिलेट विद एंड दैट इज प्योरली माय ओन. एंड देन आई हर्ड Prabh Deep's King EP and ever since I became a fan. इस बात को 4 साल हो चुके हैं and his repertoire of music only grows larger. Finally had the opportunity to sit with the GOAT and speak with him about not only just his music, what the hell has Prabh Deep been up to, कितने shows कर रहे हैं वो, what his philosophy is, what he thinks about music, God, family. ऐसी conversation with Prabh Deep has never been recorded in the DHH scene, in the India's podcasting scene. आप जैसे समझने हैं वैसे बोल लो. ये conversation is for all of you who fondly have missed Prabh Deep for so long, and I can tell you, he's back. The episode with Prabh Deep begins in 3, 2, 1. So yeah, I was recorded on a cheap mic. Well, मैं cheap नहीं बोलूँगा उसको because वो मेरे mentor ने दिया था मेरे को. माउनो का mic था. What kind of mic was that? यार कोई German company थी makeshift. हाँ. तो मेरा मेंटर एक्चुअली इज हाफ जर्मन हाफ पंजाबी. तो वो ही लेफ्ट फॉर जर्मनी और अपनी पीएचडी लिखने आया था इंडियन हिप हॉप, दिल्ली हिप हॉप पे इन 2013. तो उसने मेरे को जाते जाते एक माइक और एक मिक्सर दिया, अगर ब्रो तो यूज़ कर लियो. क्रेजी. हाँ, अभी 2023 में मैंने उसको कॉल किया 10 साल में. लाइक होती रहती थी बात, बट इट वॉज 10 years सिंस ही गेव मी द माइक. आई एम लाइक भाई तूने मेरी जिंदगी बदल दी, मतलब समझ रहे हो ना वो माइक. नाउ आई एम हियर, लाइक आई फ्रॉम दैट माइक आई मेड लाइक अमर ऑन इट, किंग, लाइक माया, सेम माइक, चिट्टा, लाइक सब उस पे बना है. SM58 कब आया फिर? SM58 तो है ही नहीं मेरे पास, वो तो मैं शोज पे यूज करता हूं. मतलब सो यू जस्ट बेसिकली बिल्ट probably your breakout hits on a mic given to you by your mentor that was a makeshift and a laptop. That's it. और क्या अब Audacity, GarageBand, Fruity Loops पे. Crazy bro, crazy. Yeah bro. And so now what kind of studios do you operate out of? Because I remember मैं pandemic में I was doing an interview with Manu Joseph और मैं Ferris Wheel Studios गया, उन्होंने आपकी फोटो लगा रखी थी. अरे वाह. गुड़गांव में ना. हाँ. Ferris Wheel. I think the owner is called Prashant or I'm forgetting his name, but he said Prabh Deep comes here, and back then I was heavily listening to King EP every single day. Yeah man, हम कल रात को Discord session करके आए King EP का. है? हाँ, मेरे Discord पे हमने session किया. Like let's revisit, you know, because it's a nice. It was a nice time in general. Yeah. In my life and around also हमने sold out tour किया उस EP का पूरा, तो बड़ा सही था वो time. It was a good time. I think when you came out with it, was it 2019, 2020? 2019. Yeah. I had just come back from college and I was struggling to find an identity कि मैं अमेरिका से आया, अब इंडिया में, अब इंडिया का सीन क्या है. तो आपको कल्चरली चाहिए होता है म्यूजिक, राइट? एंड सो यू हियर बॉलीवुड और आपको लगता है यार मैं तो इन बातों से नहीं रिलेट कर सकता. एंड देन ऑल ऑफ अ सडन यू हियर लाइक अ न्यू रोस्टर ऑफ आर्टिस्ट कमिंग अप. और मैंगो में शो था, मेरे ख्याल से बंद हो गया अब. Yes. So I remember that night my friend Ritin Bhatia, shout out to Ritin, he's like bro इंडिया में ना एक नई वेव आ रही है रैप की और हम चलते हैं. लाइक भाई क्या मतलब, बाहर के आर्टिस्ट सुनते थे और उस छोटे से रूम में आई थिंक 50-60 लोग आए होंगे. नहीं, that show I remember, मैंगो वाला, there were 300 people in the room. 200 लोग हमें वापस भेजने पड़े बाहर से because it was packed. Really? Yeah. So it was me and all these friends, and अब क्या है कि ये सब सारे के सारे गाने कोरस वगैरह रट के आए थे मेरे दोस्त के घर से, क्योंकि ज़्यादा सुन रहे थे. एंड आई हैड जस्ट स्टार्टेड गेटिंग इनटू योर म्यूजिक बैक देन. बट आई रिमेंबर सीइंग यू ऑन स्टेज, ऑन प्रेजेंस, सारे के सारे आर्टिस्ट. मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या आ रहा है इंडिया में. एंड ऑन दैट डे माई जर्नी विद योर म्यूजिक स्टार्टेड. इट्स बीन 4 years सिंस. एंड पर्टिकुलरली जब पैंडेमिक आया तो किंग EP की तो हर एक लाइन को सुन के कि भाई अब आदमी को कंबल में पड़ा है,
तो प्रभदीप का गाना सुनेगा, बोलेगा हाँ. मतलब आई रिमेंबर देयर वाज समथिंग अबाउट योर म्यूजिक वेयर अगर किसी की जिंदगी में बीटी चल रही है या दे वर यूजिंग योर म्यूजिक ऑलमोस्ट एज मोटिवेशनल ट्रैक्स. मैं आई हैड नॉट सीन इट इन माई लाइफ बिफोर. 4 साल मेरे दोस्तों ने एक्सक्लूसिवली नॉन स्टॉप दे वर ऑब्सेस्ड वर्किंग ईपी. मैन वही मैं भी वैसे ही यूज़ करता हूँ अपने म्यूज़िक को. इट्स अ टूल फॉर मी. जैसे थिंग्स आई टॉक अबाउट आई डोंट टॉक अबाउट इन पर्सनल कॉन्वर्सेशंस. मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ वो बातें नहीं कर सकता जो मैं गानों में बोल रहा हूँ. क्या बोलूँ ब्रो, मैं लाइक हम यार दोस्त बैठे हैं, मैं उनको ये इतना डेप्थ में नहीं बता पाता कि भाई यार मेरे से ना उठा नहीं जाता एंड लाइक आई डोंट लाइक दिस फीलिंग. तो मैं वो गाने में बोलना ज़्यादा प्रेफर करूँगा विद एन आर्टिस्टिक अप्रोच. और फिर उसको बार बार, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सॉन्ग तुमने लिखा पहले, तो सबसे पहले तो वही एज अ थेरेपी लाइक लगता है कि व्हेन यू राइट समथिंग योर प्रॉब्लम्स और वट एवर इट इज, आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई. दे लूज देयर वेट. हाँ, you feel light. Then you say it again and again to practice. Then you record it. Then you listen to it again and again, and it becomes normal for you. You know, it works as a therapy. Like every time I'm going through some intense times, मैं लिख लेता हूँ वो and record it. Sometimes I don't put out those songs. पर मेरे लिए बहुत सही काम करता है. And I think that's how it works for other people also. You know, like कि सही में यार, like मेरे the progression, you wanna get out of your bed, you wanna do something with your life, और नहीं हो रहा है, you know, XYZ reasons, तुम्हें एनर्जी नहीं आ रही है रोज की, वो these are the songs you should listen to. Bro, I even remember, मैं तो I was just revisiting all the lyrics, ठीक है, और एक I think in one of the songs you say सवेरे फोन नहीं चेक करना. मतलब for me it's like I'm getting the best advice for social media, क्योंकि जैसे बहुत सारे ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लोग आते हैं, बोलते हैं कि आपका मॉर्निंग रूटीन क्या है, डोंट चेक योर फोन फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग. आई जस्ट नेवर थॉट आई वुड हियर इट लाइक इन अ कल्चरली रेलेवेंट सॉन्ग कि सुबह उठ के फोन नहीं चेक करना, और सारे करते हैं. तो टेढ़ा ऐसे फोन और बैठ के, मैं भी गाने में यही बोल रहा हूँ कि मेरा भी मन करता है कि नहीं करूँ सुबह चेक फोन. पर मैं क्या करूँ? मेरा भी मन करता है कि मैं सुबह सुबह उठ के भागने जाऊँ, पर मैं क्या करूँ, मैं फंसा हुआ हूँ इसमें. बट कट टू लाइक अनदर ईयर, द शो, बाय द वे यू केम फॉर मैंगो, दैट शो, उस शो के बाद मैं थाईलैंड गया था उसी सेम नाइट, एंड आई रोट द नेक्स्ट एल्बम देयर, लाइक उसी हफ्ते में. एंड देन आई केम बैक फ्रॉम देयर एंड आई एम लाइक ओके, नाउ इट्स टाइम टू गेट माई लाइफ बैक ऑन ट्रैक. फिर मैंने सुबह फ़ोन चेक करना बंद किया, फिर मैं भागने भी गया. यू नो, लाइक द थिंग्स आई सेड इन माई सॉन्ग कि मेरे को ये करना है, बट मेरे को मोटिवेशन नहीं आता. एंड देन बिकॉज आई wrote it and I'm listening to it again and again, it kind of worked really well. So what was, क्या ऐसा क्या लगा कि यार बड़े सारे लोग आए हैं हमें देखने के लिए, या I think I'm becoming known for my work, I want this as an artist, I want that people finally मेरा म्यूजिक पहचाने, उन चीज़ों को समझें, इसलिए now it's time to sort of eliminate the self sabotage? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सेल्फ साबोटाज तो चलता रहता है भाई. हाँ, वो तो बंद नहीं होगा कभी भी. नहीं मतलब ऐसा कोई पिवटल मोमेंट आया होगा ना कि यार मैं अब चाहता हूँ मैं थाईलैंड पहुंचा, नई एल्बम, लाइक कोई ऐसी समथिंग मस्ट हैव हैपेंड इन दैट शो दैट ट्रिगर्ड यू टू जस्ट फ्लाई टू थाईलैंड एंड लाइक राइट योर न्यू एल्बम. नहीं, वो तो पहले से ही प्लान था हमारा थाईलैंड जाने का. अच्छा. हाँ, इट वाज किंग टूर वाज डेफिनेटली अ मार्क इन माई करियर. जो मेरे को लगा, ऐसा नहीं था कि हमने ऐसे 5,000 लोगों का शो किया है. कम लोग थे हर शो पे. बैंगलोर में 500 थे शायद, बिकॉज वेन्यू छोटा था. वी डिडंट एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल. और ये 1 साल बाद किया हमने टूर, बिकॉज 1 साल हो चुका था किंग ईपी आए हुए और किसी ने फक नहीं दिया था. सडनली इट गॉट पिक्ड अप बाय a lot of people, like Anushka Sharma shared it. I think Vicky Kaushal sang it in one of his videos, like he was randomly getting a haircut and he's singing Amar. तो तब वो थोड़ा हुआ, and like it was very natural. Like ऐसा मेरे को तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. मैं तो चिल मार रहा हूँ अपना, लाइक वाह ये सब भी चल रहा है. Is that how Virat Kohli ended up following you on Instagram?
आई हैव नो आइडिया मैन, लाइक हाउ डिड ही फॉलो मी, लाइक मेरी बहन आई कमरे में, बात कर रही थी वो अपनी दोस्त से, कह रही नहीं नहीं पहले उसने फॉलो किया है, नहीं नहीं पहले उसने फॉलो किया। मैं कहा किसने फॉलो किया है, क्या हो रहा है? लाइक अनुष्का एंड विराट स्टार्टेड फॉलोइंग यू एंड आई एम लाइक व्हाट। अब मैं उठा ही हूँ बस अभी, बेड में ही हूँ, मैंने देखा उसको एंड आई एम लाइक ब्लू टिक वाला उस टाइम पे, लेगेसी वाला। हाँ, और मेरे पास ब्लू टिक नहीं था उस टाइम। आई एम लाइक fuck, he is the first of all, like he's Virat Kohli and Anushka Sharma, like both of them have done like उन्होंने, अब क्या ही बोलूँ मैं, सबको पता ही है उन्होंने क्या क्या किया है। वो बेसिकली देश के रॉयल कपल बोल सकते हो, जैसे ब्रिटिश की ब्रिटिश रॉयल फैमिली होती है, ऐसे उसी करार दे आर रॉयल्टी फॉर श्योर एंड गेटिंग अ स्टैम्प फ्रॉम देम। फिर मेरी बहन आई थोड़ी देर बाद, बोलती भाई फॉलो बैक तो कर दे। मैं भूल गया था कि अरे हाँ रुक रुक रुक। वो इतनी डेज मोमेंट होगी ना कि ये कैसे हो गया है। Of course, and then I remember like I come from West Delhi, Virat. तो मैं हमारा कुछ सीन हुआ था, I wanted to start a brand called Virat and मेरे को कपड़े वपड़े बेचने थे उससे। Yeah, you released your clothing with the King EP, एक limited कुछ आया था कपड़ों का। सबका आता है, भी मेरा अपना ही है। Crazy. भेजता हूँ आपको एक टी-शर्ट। Solid bro. सो मेरा कुछ ऐसा सीन चल रहा था एंड दे आर लाइक Virat इज नॉट अवेलेबल बिकॉज विराट कोहली हैज इट। तो अब भाई ने फॉलो किया, अब मेरे को पूछना तो बनता था। मैंने बोला भाई हेलो क्या हाल है? You said क्या हाल है? हाँ, हाउ यू मैन? तो बोलता है भाई बढ़िया बढ़िया। मैंने बोला यार सब कुछ ठीक है, ये Virat का क्या सीन है? लाइक व्हाई डू यू हैव Virat ऑन योर बैक? And he's like, Virat is my area code. I was like, what are you talking about? He's like, Virat, like I'm from Delhi, Virat, and Virat is my area code. I'm like, bro, ये तो scene on है. Then we talked about like different like food spots, you know, like जो सिर्फ neighborhood वालों को ही पता है. हाँ. You know, Is he from Tilak Nagar? He's from Vikaspuri, so Okay, close by. हाँ, मतलब next neighborhood to mine. So, and he always gave me like, whenever I'm stuck, like I ask him for advice. Bro, you've got the goat for like speed dial mentorship, crazy. हाँ भाई, वो मेरे को हमेशा like every time he gives me advices like intense. Last time he gave me advice, I moved to Goa. For real? Yeah, like. So what were you struggling with that you sought his advice at that time? Man, I was struggling with this. I felt like I was stuck in this space. I thought like, you know, like hip hop में ऐसे बोलते हैं ना, like I represent the hood. हाँ. I'm never gonna leave my people behind. But in order for me to help these I call my people, हाँ. I have to move out of the hood. Then I can be, because यहाँ पे there is a lot of work that I have to do just to stay alive. What do you mean by that? Like, मतलब there is a lot of anxiety. There is a lot of, you always have to have your eyes on six. You always have to have a backup. कि लड़के वड़के जानने चाहिए, you know, like all that. And I didn't want to focus on that part. कि कुछ हो जाएगा तो क्या करना है मेरे को. I wanted to focus on my career more. there is always, मैं ये बात बोलता हूँ and people rarely agree, but I think in Delhi NCR आप एक हमेशा you always presuppose hostility all around. All around, yes. है ना? Yep. तो the moment I land here, I'm like, मैं तीन चीज़ सोचता हूँ, नाम, शोहरत, अपने आप को सेफ रखना, ऊपर पहुँचना. The moment you go where no one knows you, अंदर के आर्टिस्ट निकल के आता है, आदमी स्माइल करके लोगों से बात करता है. हाँ. You feel like you have a nicer nature that comes out. Yeah. Here it's like you keep it for the close ones. कल रात को ही हुआ, मैं अपने कजन के साथ ना ऐसे चिकन की दुकान पे गया. वो उसका वैन है तो हम चिकन लेने गए. एंड दिस गाय जो काट रहा है अंदर कसाई है, वो देख रहा है मेरे को ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक. माय फर्स्ट रिएक्शन वाज गेटिंग माय फोन आउट एंड लाइक गेटिंग लाइक मैं स्पीड डायल पे किसी को डायल पे रखूं. अभी कुछ भी हो सकता है टाइप्स. Is it really that bad? हाँ, मतलब स्टोरी सुनो पूरी. Sorry. तो मैं देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा है, चेकआउट कर रहा है.
फिर उसके बाद जो बंदा काम कर रहा है वो मेरे को ऐसे कर रहा है, कह रहा है इधर आ। मैं कहा तू इधर आ, ये कल रात की बात है, ठीक है। और ही वॉज लाइक क्रॉस्ड आई, तो मेरे को दिख भी नहीं रहा है, मैं इधर उधर देख रहा हूँ, अच्छा मेरे को ही बोल रहा है ना। तो फिर उस बंदे ने भी बोला इधर आ, मैं चला गया अंदर। अब मेरा भाई भी खड़ा हुआ है, कज़न भी खड़ा हुआ है अंदर, तो बोल रहा है भाई तू चिट्टे वाला है क्या? मैंने यार तुम इतना इंटेंस, मेरे दिमाग में इतना इंटेंस माहौल बन चुका था कि मैंने बोला यार फक यार, मैं कल जा ही रहा हूँ, लाइक अभी रात को ये होना, यू नो, लाइक आई वाज ट्राइंग टू टैकल, बट फिर मेरी भी ईगो बहुत आ जाती है मेरे एरिया में, बेंचो मैं बड़ा हुआ हूँ यहाँ पे, ऐसे कैसे बोल दिया इसने? हाँ, तो these are the things I wanted to get out from, you know what I'm saying, like I wanted to just focus on my career for a while. अब मैं वापस जाता हूँ ना, जैसे अब मैं हफ्ते के लिए कभी आ गया, 3 दिन के लिए आ गया, नाउ आई गेट रिस्पेक्ट। पहले होता था घर की मुर्गी दाल बराबर, हाँ ये तो यही रहता है। आपकी एब्सेंस से ना दे आल्सो एंड अप मिसिंग यू एंड टॉक अबाउट कि यहाँ से प्रभदीप है, इस तरह से, राइट? बट इफ यू आर नोन लोकली, आई थिंक वो जो वो होता है ना लोकल हीरो वाला ट्रोप, वो आदमी पे जिम्मेदारी इतनी डाल देता है कि समटाइम्स इट्स नॉट गुड फॉर योर आर्टिस्टिक एक्सपेंशन। ऑफ कोर्स मैन, आप सरपंच बन रहे हो, आप आर्टिस्ट बन रहे हो। हाँ, और इट्स नॉट माय जॉब आल्सो, लाइक बीच में ऐसा हो भी गया था, लाइक आई डोंट नो हाउ आई गॉट दिस टैग ऑफ सोशो पॉलिटिक आर्टिस्ट, यू नो, मेरे को ऐसा बोलते थे कि आई टॉक अबाउट जस्टिस अ लॉट, बट इट वाज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता किसी की, अपनी नहीं ली जा रही, मैं तो दूसरों की क्या लूँ। समझ रहे हो? कॉन्ट्रास्ट दैट विद गोवा के अंदर फार्म टू टेबल इंग्रेडिएंट वाला लंच जो करा रहे हैं कि आओ जी, मैं हीलर हूँ, मैं मूनलाइट हीलर हूँ, मैं एक्रो कोच हूँ, हम सारे खा रहे हैं यहाँ पे किनोआ वाला लंच बड़ी सी टेबल पे बैठ के, और यहाँ पे वो पीना कोलाडास आ रही हैं, यहाँ पे कसाई चिकन काटते हुए ऐसे बोल रहा है, ऐसे कर रहा है मेरे को इधर। Yeah, what I always find in Goa, particularly North Goa, is even when I go as a tourist, there is a migrant population of people from Delhi and Bombay who completely let down their judgment guards. हाँ, बिल्कुल छोड़ के एकदम ऐसा लग रहा होता है किसी मेट्रोपॉलिटन गांव में हो आप, because it's like a village, but no one judges you really, like people just let you be. 5 टी-शर्ट्स है मेरे पास बस, जिसमें से 3 मेरी मर्च है, यही है मेरे पास वहाँ पे, यही पहनता हूँ, बाकी सारी डोनेट कर दी। कि क्या है, मतलब मेरे को कहीं जाना होता नहीं, किधर जाना है, शोज़ वगैरह करने हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे इंसान है जो कपड़े देते हैं मेरे को, मेरी स्टाइलिस्ट है खुद की, तो सही है, सब हो जाता है मैनेज। सो दीज आर द थिंग्स। मैं दिल्ली में रहता था, मैं कमरा इतना छोटा है, जूतों से भरा हुआ है, 60 जूते पड़े हुए हैं कमरे में, पहनता मैं 3 हूँ, समझ रहे हो? तो वो बाकी सारे निकाले। ऑल दीज थिंग्स आई अंडरस्टूड गोइंग बैक टू गोवा, बिकॉज देयर इज नो जजमेंट। कोई मतलब इट्स प्रैक्टिकल। तुम घर से बाहर, तुम बीच पे जा रहे हो, योर लाइफ इज यू गो आउट ऑफ योर हाउस, यू गो टू बीच, यू मीट योर फ्रेंड्स, सब कुछ है ना। तुम चप्पलें सारे बाहर ही उतारते हो और यू कीप इट इन योर स्कूटर का ट्रंक या गाड़ी का ट्रंक, है ना, तो पहन के क्यों जा रहे हो? तो हम नंगे पैर ही चले जाते हैं, लाइक सो यू गो टू द बीच बेयरफुट। You always go to the beach barefoot. नहीं, कुछ लोग होते हैं ना कि वो उतारते नहीं हैं चप्पल। मेरे को तो बहुत मजा आता है नंगे पैर बीच में चलने में। नंगे पैर ही जाना चाहिए भाई, वही तो फीलिंग है। फिर अगर आपको पूरा पानी में नहीं जाना, थोड़ा थोड़ा पानी आता है पैरों को स्वीप करके, और गर्मी हो रही होती है, हर पानी लग जाता है, बहुत अच्छा लगता है। Yes sir, याद आ गई। बट लाइक सो वाज इट डिफिकल्ट एडजस्टिंग फॉर यू कि यू आर यूज्ड टू यहाँ पे रहना हमेशा, यहाँ पे कनेक्शंस, एंड देन वहाँ पे म्यूजिकली रीचिंग आउट टू अदर पीपल टू कोलैबोरेट विद, फिर उसके बाद एक जिंदगी बनाना वहाँ पे। इट्स बीन 3 years you've been living there since, है ना? मैंने यार पहले 2 साल तो काम ही नहीं किया किसी के साथ। आई वॉज जस्ट एंजॉइंग माई ओन। नहीं, इंडिपेंडेंट तो मैं शुरू से ही, म्यूजिकली तो आई वॉज इंडिपेंडेंट, राइट। तो मैंने किसी के साथ काम नहीं किया। आई वॉज एंजॉइंग माई ओन कंपनी, लाइक आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू म्यूजिक। अभी 3 एल्बम्स पड़ी हुई हैं जो निकली नहीं है। हाँ, जो मैंने पिछले 2 साल गोवा में बैठ के माल बनाया है बहुत सारा, यू नो, और उसको कंपाइल करा है, अभी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में डाला है। सो आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग, सी वेयर माई क्रिएटिविटी कैन गो, हाउ फार आई कैन गो विद दिस, यू नो।
और कितना एक्सपैंड कर सकता हूँ. 2 साल वो किया. नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग विद म्यूजिशियंस जो मेरी आई लिव ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल लेन. Like it's filled with musicians from all around the world. Like great musicians who've been making, like playing guitar, bass, saxophone from last 20 years, 25 years. Like सेशन म्यूजिशियंस होते हैं जो प्रॉपर. like the jam well. Like even if you just sit in the corner of the room, they're jamming. Like मतलब माहौल बन जाता है. They teleport you somewhere else. So it's a good break for me also अपने आप से. तो इतना मेरे को हुआ नहीं गोवा जाके एडजस्ट करने का, बिकॉज आई रियली लव्ड इट. दैट्स व्हाई आई मूव्ड देयर. एक्सीडेंटली आई मूव्ड देयर. मतलब लॉकडाउन लग गया था तो हम फंस गए थे. तो फंस क्या गए थे, मतलब मज़े ही आ गए लॉकडाउन में. एंड आई वाज स्टेइंग 2 minutes फ्रॉम द बीच. पूरा लॉकडाउन हम सनसेट में मतलब रोज फट रहे होते थे. तालियां बजाई हमने सनसेट के बाद. भाई आज तो ये तो मूवी थी, यू नो. या लाइक आई कांट बिलीव कि हम अपने नेचुरल रूट से इतने अलग हो गए हैं कि मतलब आप लोग सनसेट देख रहे हो जो कि ऑर्गेनिक है. यहाँ पे किसी बहुत बम्पर सुपर डुपर आर्टिस्ट आता है तो रात को लोग पी पा के जाते हैं, भाई ओ आज कितने मजे आए, बिकॉज देयर इज नो फक नेचर टू लाइक एंजॉय. या वो तो है. वो आई थिंक ब्रो लाइफ इज बैलेंस ऑल्सो. आई लव दिल्ली नाउ. या बिकॉज यू आर स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम इट. लाइक फ्लाइट के हिसाब से आना एक यहाँ पे करना एंड देन चले जाना, राइट? नहीं आई स्टे हियर फॉर अ वीक. अच्छा. आई लव बॉम्बे ऑल्सो. वो बैलेंस रहता है यार उससे ना, कि तुम एक हफ्ता इधर रहे, एक हफ्ता बॉम्बे रहे, फिर बाकी के 2 हफ्ते तुम बट दैट इज यू लाइक गोवा में नेटवर्किंग एंड डूइंग योर गिग्स एंड योर जो काम करने होते हैं, लाइक द परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ योर वर्क, राइट? क्योंकि अदरवाइज लाइक इज इट आइसोलेशनरी टू लिव देयर इन गोवा? वेरी मच. लाइक इट्स रियली ऐसा नहीं लगता मैं इंडस्ट्री से दूर जा रहा हूँ जहाँ मेरे को मेंटेन करना है अपने आप को और गिग्स करनी है? मेरा मैं कहीं भी रहूँ, मेरा माई मैनेजमेंट हैज टू बी कनेक्टेड विद एवरीवन. मैं बात करूँ ना करूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. And you build your life like that. हाँ, आई हैव टू बी कनेक्टेड विद पीपल लाइक यू. लाइक हम डे टू डे जैसे रहना चाहिए ना, इन टच की क्या चल रहा है भाई. ऐसे हैं लोग. लाइक आई स्टे इन टच विद लाइक मोर आर्टिस्ट जस्ट टू गेट इंस्पिरेशन. यू नो समटाइम्स कभी मैं बहुत सही प्रोजेक्ट सुन लेता हूँ किसी का, तो मैं खुद ही कॉल कर देता हूँ उसको. दैट्स हाउ मी एंड रफ्तार एक्चुअली मेड द लास्ट EP. Insane EP. बहुत लाइक आई थिंक आई हर्ड इट ऑन द रेडियो आल्सो. Oh really? मैं रेडियो ज़्यादा सुनता नहीं हूँ. बाय चांस जैसे कभी गाड़ी में डिफॉल्ट कोई लगा के छोड़ जाता है ना, घर वाले NPC म्यूजिक सुनते हैं रेडियो पे. Yes. तो फिर वो मैंने कहा ये तो बड़ा सही है यार कि इट्स कमिंग हियर. बट लाइक यू मेट हिम बिकॉज you messaged him, said you loved his stuff. Like how did it happen? No, I called him like on his birthday. He dropped a hard drive volume 1, his last to last project. So I called him. I'm like, bhai, happy birthday first of all, and I'm upset with you. He's like, क्या हो गया भाई? मैं बोला मैं नहीं हूँ EP पे. So he had like 7 songs. He had Badshah on it. He had Sikandar Kaalo on it. Love Sikandar Kaalo. Deep Kalsi on it. Like he had like a lot of bunch of artists on this hard drive volume 1. So I was kind of upset कि bro मैं क्यों नहीं हूँ इस पे. He's like कहाँ है तू? मैं गोवा में हूँ. He's like मैं आ रहा हूँ, परसों मिलते हैं. Like ठीक है. So he came. I met him. Like we chilled for 5 days. सिर्फ chill किया हमने, music नहीं बनाया. Non-stop? हाँ, like he was living like 15 minutes from my house. मैं रोज़ जाता था, हम चिल करते थे, मैं वापस आता था. टकीला भी थोड़ी सी बीच में एक आधी रात. तो देन वी लाइक ओके नाउ वी क्लिक्ड एक्चुअली कि आइडियोलॉजी मैच करती है. एंड आई ऑल्सो नो हिम फ्रॉम वेरी लॉन्ग वेयर व्हेन ही बॉट अ हाउस फॉर हिज मॉम लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक ईयर्स अगो. तब मैंने बोला था, मैं कहा भाई देख म्यूज़िक जैसा मर्जी हो, कोई कुछ भी बोले, जो इसने करा है ना, ये जो मूव था, हम सब यही करना चाहते हैं. मैं जहाँ से आ रहा हूँ मैं तो यही करना चाहता हूँ, और उसने कर दिया. सो आई रियली कनेक्टेड विद हिम लाइक सिंस देन. एंड नाउ वी मेट लाइक फर्स्ट टाइम वी चिल्ड टुगेदर लाइक 1-on-1 फॉर 5 days. तो बड़ा सही, इट वॉज वेरी नेचुरल. देन द मेन थिंग हैपेंड व्हेन आई केम टू बॉम्बे. 4 दिन में हमने 5 गाने सूद दिए. मतलब सूद दिए भाई, मतलब
पेलम पाल हो रहा था एकदम. वो आता था मेरे सामने ऐसा. ही वाज राइटिंग इन अनदर रूम. वो बाहर सुनता था बीट, जाता था लिख के आ जाता था. आई थिंक 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 15 मिनट्स समटाइम्स. इट्स लाइक मेरा तो हो गया, तेरा कहाँ है? सो इट वाज ऑलवेज लाइक Competitive. हाँ, very very healthy. Yeah, but you need that, right? Like, yeah, of because you're course. meeting someone like who's like at par, like, Are, I have to like bring a better part of myself out now. Or basically what he did to me, I do that to other people like in sessions. तो मेरे को ऐसा हो गया कि अच्छा ये तो बहुत सही है. Then it was like really fun, just the whole ideology of collaboration. कि when you collaborate, मेरी आइडियोलॉजी भी यही थी, उसकी भी यही थी कि गाना बढ़िया होना चाहिए. किसने क्या किया, किसके क्या क्रेडिट्स हैं बाद में को मैटर नहीं करता वो. इफ द प्रोडक्ट इज नाइस, बाद में हमारा ही नाम है. देख लेंगे बाद में, वो कोई सीन नहीं है. बट लाइक इट हैज टू बी, और वो दिखता है लाइक द सिनर्जी इज देयर. इट ट्रांसलेटेड वेल, फैंस को समझ में आ रहा है. सुन के वो ड्रॉप भी हुई थी तब भी लोगों को समझ में आ गया था, भाई ये एक्सपेक्ट नहीं किया था. Yeah, because one would assume, I remember one of your tweets कि मेरे ये numbers हुए हैं without any collabs. I assume that you were like a very independent, मेरे को खुद से बनाना है. But then back to back to back collabs, even on Brahm, like tons of collabs. Yes, like, sir. It's fun, bro. It's fun to see you like expand your repertoire. जो मतलब करना भी चाहिए, क्योंकि I think, don't you think that sometimes fans needlessly pigeonhole you as an X artist or Y artist? Of ये तो course. सारी लड़ाई है. हाँ, बहुत करते हैं, बहुत करते हैं. आपसे क्या एसोसिएट करते हैं ज़्यादातर? मेरे से एसोसिएट करते हैं भाई, इससे जो एसोसिएट होता है उसके भी नंबर्स नीचे चले जाते हैं. अभी आपके पॉडकास्ट में भी आएगा नहीं कि ऐसा नहीं होगा. भाई ये आया, देख प्रभ आया इसके पॉडकास्ट पे, इसके भी चलेगा नीचे. नहीं, they associate me with like I also give them different music with every project. मैं हाँ स्टाइल शिफ्ट कर देता हूँ हर प्रोजेक्ट. Tabi and Brahm are vastly different. Yeah. Like for that. King matter. also Yeah, King. very Yeah. different from all two. Pra is totally different. और अगली जो आ रही है वो बिल्कुल ही like अलग जोन में है. तो उनके लिए भी चैलेंजिंग रहता है. And that's what I want to do. Like I want to challenge my audience. Yeah. कि तुम like how audience challenge artist. Audience का बहुत प्रेशर रहता है आर्टिस्ट के ऊपर in क्या the challenge studio. करते हैं लोग? Like what they want to listen. Like देखो ब्रो, एक आर्टिस्ट बैठा है ना स्टूडियो में, and they have to pay a certain amount, like कि rent भरना है या EMIs भरनी है. Then they have to think about what audience want, and that's a huge pressure while creating in the studio, because you have to box yourself what's happening. Like there is a formula to it, you have to apply it, and it works also. Lata it, you get returns also on it, and a lot of people do it, and they build their life, they support their loved ones, you know, through this whatever they get out of it. तो मेरा ऐसा था कि मैं जो तुम्हें प्रेशर करूँगा. Evolve with me. हाँ, कि तुम like my music is really thought provoking. It is. हाँ, कि मेरा because I'm very secure with my space, like in the industry. मेरी स्पेस कोई खा नहीं सकता. मैं जहाँ पे हूँ, चाहे मेरे को 10 लोग सुने, मैं वो 10 लोग कनेक्ट करेंगे और वो उनका कुछ तो भला हो गई. तो मेरी स्पेस बड़ी क्लियर है मेरे लिए, क्योंकि ऐसा हर टाइप का म्यूज़िक बन रहा है. लोग डिफरेंट आर्टिस्ट केटरिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियंस. मैं एक अपने छोटी सी कोना पकड़ रखा है. छोटा सा तो नहीं है ब्रो. Like I said, this interview was 4 years in the making. Like I decided I wanted to interview you since, मतलब जब हमने पहली बार देखा था उस टाइम से. But which you know begs the question कि भाई सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर ये जो एक, जैसे रिक रूबिन ने बड़ा अच्छा पॉडकास्ट निकाला है, टेट्राग्रामेटन करके नाम निकाला है कुछ, एंड वो क्या करता है इंस्टाग्राम पे हमेशा एक चीज़ शेयर करता है. So one of the posts that I remember he said, and he's a legendary producer, so मैंने कहा इनकी बात में शायद वजन होगा, सुनता हूँ. He said that audience comes last, right? Always. Or this is a
अब लोग चाहते हैं कि भाई जैसे इन एन आर्टिस्ट इज अ लिटिल डिफरेंट, YouTube for that matter is far more numbers driven than Yeah. music is, and I could be wrong, but अब कोई भी यूट्यूबर सोचता है कि भाई यार ये इस तरह की वीडियो ज़्यादा चलती है, ऑडियंस पागल होती है, ऐसी और बनाता हूँ, कंप्लीट डेटा ड्रिवन, राइट? देन देयर इज़ द आइडिया ऑफ टेस्ट कि नहीं यार मैंने ना यार ये बना के मैं तो ये बन गया हूँ, मुझे तो एक्चुअली ये बनाना है, फिर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर आदमी क्या करे, वेयर डज ही फाइंड लाइक दैट स्पिरिट ऑफ क्रिएशन दैट ही फर्स्ट स्टार्टेड विद? मैन देखो, जो आपने पहली चीज़ बोली कि ये बहुत चलता है, जब आर्टिस्ट होता है ये बहुत चल रहा है, किसी ने पहली बार वो किया होगा, करेक्ट, तो वो चल रहा है अभी. सो यू कैन ट्राई समथिंग न्यू एंड वो भी चल सकता है. यू ट्राई 10 न्यू थिंग्स एंड वन ऑफ इट विल वर्क एंड यू ओपन doors for other people that will create. And how Rick Rubin said audience come last, I connected with it a lot. Because आप देखो, let's talk about Bacha or Honey Singh and Raftaar, like this wave that came first. There was not this kind of music in the country before. Nope, never. Right? They got it. Like ये music आया, like the commercial, like pop. You can't even call it commercial from that time because we used to हम तो चुपके से हार्ड डिस्क और USB में डाल के सुनते थे. Yeah, hip hop like को pop के साथ combine करके उन्होंने वो लेके आया. दैट वॉज समथिंग न्यू एज वेल. अगर वो भी यही सोचते हैं कि जो पहले चल रहा है ये चल रहा है, ये कर लेते हैं, तो बहुत. अभी सोचो इंडस्ट्री कितना कहीं और होती. हमारे लिए भी ये जो दरवाजे खुले उसके बाद नेक्स्ट वेव्स आनी चालू हुई, उसके बाद कुछ नहीं होता, अभी कहीं और होता सीन हमारा, यू नो. सो इट्स ऑलवेज ऑडियंस ऑलवेज कम्स लास्ट बिकॉज दे आर busy earning their bread. Your job is to cater them with just good shit. आदमी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता. अभी हम बात कर रहे थे मैनेजमेंट वगैरह की, ऐसे जैसे एज अ क्रिएटर पॉडकास्टर मुझे पता है कि आई हैव हायर्ड सम वेरी स्मार्ट पीपल हु कैन लाइक डील विद ऑल ऑफ दिस स्टफ सो दैट आई कैन फोकस ऑन मीटिंग पीपल लाइक यू, रिकॉर्डिंग, राइट, एंड देन थिंकिंग अबाउट इसको नेक्स्ट डायरेक्शन में कैसे लेके जाना है. इनएविटेबली फिर भी ना थोड़ा बहुत बैक एंड हो जाता है. आप भी फ़ोन पे बात कर रहे थे, फलानी चीज़, ये वो. अब आदमी 24 घंटे आर्टिस्टिक ब्लिस में रह सकता है या फिर लाइक देयर इज सम डिग्री ऑफ कि भाई ये सब तो करना पड़ेगा? आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ब्लिस में 24 घंटे रहना भी नहीं चाहिए. नहीं, क्यों रहना चाहिए? तो फिर बात क्या करेगा वो? आम इंसान वाली चीज़ें भी तो करनी चाहिए ना, आम इंसान के साथ कनेक्ट करने के लिए. अब मैं जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी डीलर से मिल रहा हूँ, घर देख रहा हूँ, यू नो, लाइक ये दीज आर द एक्सपीरियंसेस. मैं उससे 2 चीज़ें सीखा. अब मैं वो बोलूँगा गाने में तो कोई कनेक्ट करेगा कि हाँ भाई मैं भी किराए के घर पे रहता हूँ, मेरे को पता है तू क्या बोल रहा है, यू नो. अब मैं सिर्फ 5 स्टार होटल की बात करूँगा जिसकी विंडो खुलती नहीं है. That's true, by the way. नहीं खुलती, हाँ. कि हवा ही नहीं आती, नेचुरल हवा नहीं है भाई पूरे होटल में. तो अब ज़्यादा लोग नहीं कनेक्ट कर पाएंगे उससे, स्पेशली जहाँ से मैं आता हूँ. Like there are people living on 200 rupees a day. Literally 200 रुपये भाई कुछ नहीं होता. मेरा कैब का 250 लगा है अभी इधर आने के लिए. So just seeing that coming from that neighborhood was like, okay, I know artists have to be connected to day-to-day life more in order to create. तभी कहते हैं ट्रैवल कर लो. जब म्यूजिक से क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है, any kind of creative block, any field you are in, then you don't do that, pursue your own thing. कुछ और कर लो थोड़े टाइम के लिए. That's why they say it. तो आर्टिस्ट ब्लिस में रहने का ज़रूरत ही नहीं है 24 घंटे. Do it when you have something like, जब तुमने बहुत ऐसे 1 साल काम कर लिया and like you have made a mark. तुमने like how आपके 100 पॉडकास्ट आ गए. मैं तो 2 महीने की स्पेन की वेकेशन के बाद आया हूँ अभी. स्पेन गए थे भाई? हाथ में ला मेरे. क्या हो गया? बस भाई मैं इतने बहुत सही चीज़ है. 2 महीने गया मैं और लाइफ लॉन्ग मेरी ड्रीम थी. पता नहीं ऐसे जैसे यू समटाइम्स यू गेट विजन्स, राइट, कि मेरे को सपने में आता था कि एक ऐसी लैटिन अमेरिकन कंट्री है जहाँ मैं स्क्वायर में खड़ा हूँ और आसपास वो मारियाची गिटार बज रहे हैं. हालांकि मारियाची कॉन्सेप्ट तो मेक्सिको का भी है,
बज रहे हैं और ना मेरे को खूबसूरत यूरोपियन समर की लाइटें आ रही हैं ऐसे ऐसे, और मेरे अंदर ना एक आई एम जस्ट गेटिंग लाइक अच्छा हो रहा है जो कुछ हो रहा है। तो बहुत साल तक सोचता रहा, दुनिया भर में बताया मैं स्पेन जाऊंगा स्पेन जाऊंगा, बोले 1-2 साल हो गए, बोले जा रहा है नहीं जा रहा क्या सिस्टम है, बोलता रहता है। और फिर आई डिसाइडेड टू वर्क रियली हार्ड एंड देन आई डिसाइडेड, तो पैसे इकट्ठे होने शुरू हो गए, चले जाते हैं। मैं चला गया, 4 दिन तो मेरी गांड ही फट गई कि मैं पहुंच गया हूँ। तो आई जस्ट स्टेड इनसाइड द रूम फॉर, बिकॉज यू कांट प्रोसेस लाइक अपनी ड्रीम पूरी कर देना। देन आई गॉट आउट, इज लाइक अब मैं यहाँ पे हूँ, और मैंने बाहर ऐलान भी कर दिया 2 महीने तक नहीं आऊंगा मैं। वाह भाई। सो देन आई वाज लाइक अब तो मेरे को रहना है। एंड देन दिस होल न्यू जर्नी हैपेंड वेयर स्टेप बाय स्टेप आप कितना भी काम कर लो ना, यू बिकम योर जॉब इवेंचुअली, यू बिकम योर रोल। या उस सारे को अनलर्न करके बहुत टाइम से आई हैड नॉट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एज हाय व्हाट्स अप माय नेम इज विनम्र आई एम फ्रॉम इंडिया, ये करा ही नहीं था मैंने। सो फ्रॉम स्क्रैच, मतलब मैं होटल्स, हॉस्टल्स, यॉट, अपार्टमेंट, दोस्त के यहाँ, हर मैंने पूरा स्पेक्ट्रम डिस्कवर, मैं आधी स्पेनिश बोलनी शुरू कर दी। भाई एंड लास्ट के 15 दिन आई वेंट टू लंदन, मेरी बहन रहती है वहाँ पे, वहाँ मैं फिर पॉडकास्ट करने चला गया। एंड देन वो धीरे धीरे वापस आना शुरू हो गया कि ये एक आइडेंटिटी है, बट वो पार्ट्स इंटीग्रेट हो गए। एंड इफ आई हैड नॉट टेकन दिस सबैटिकल, I don't think I would have enough things to talk about on the mic. Of course, man. Like these are the experiences. Abhi, you know, when you go out, especially in these kind of settings, people know you, right? And I'm sure there will be people there are people coming up to you. Hey, remember me? You know, those kind of. And More you than me. हाँ. आपके से ज़्यादा होता होगा, हाँ. हाँ, like when you meet like on average like 100 people a day, or when on tour you meet way more than 100 a day, like it's constant. How will you remember everyone, you know, that kind of stuff. You forget like who you are actually in this whole process of कभी ऐसे एक हफ्ता निकल जाता है and like you're like like मेरे को कभी ऐसा होता है बीच में which city I am in. Yeah, not even a moment to myself. हाँ, मैं कौन से शहर में उठा हूँ आज. मतलब बॉम्बे में बोला जा रहा है व्हाट्स अप दिल्ली, आर यू डूइंग, लाइक फक बॉम्बे है ये. और फिर मैं उनको बोल रहा हूँ कि इट फील्स लाइक होम, दैट्स व्हाई आई सेड दिस, यू नो, लाइक कवर अप करने के लिए. You tell me, like, what is like life on the road? जैसे एक बड़ा, हम तो when I was growing up 16-17 years of age, मेरे कमरे में 44 से 45 postergallery.com के पोस्टर थे हर तरह के रॉक स्टार के. I was like obsessed with rock and roll, you know, like the classics like Jim Morrison, Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, big on Led Zeppelin, right? Sick. तो ये सब, and I would listen to all of their songs all the time, और मैं सोचता था कि 27 क्लब आते ही मैं भी ये कर दूंगा जो उन्होंने करा था. I will just off myself and I wanted to become a rock star. कॉलेज में बैंड में भी था, and I used to see कि वो बात करते हैं आज मैं यहाँ उठा, फलाने बैंड ने होटल ट्रैश कर दिया, और कहते हैं कि क्या वाइल्ड डिबॉचरस लाइफ है, ग्रुपीज हैं, ये सब. And I got so infatuated. Then I started meeting musicians in India. I'm like, you know, 20-30 years later on, this dream still lives on in a different way, right? So I don't know, what is it like? आपके पास क्या चीज स्टेबल रहती है और क्या चीज up in the wind होती है when you're on the road? भाई एक तो स्टेबल तो कुछ नहीं होता. Like it's unpredictable. Everything is unpredictable. Anything can happen at any time, you know, like there can be a stalker, like outside your room, like all night you go, है ना, भाग रहा हुआ है, लिफ्ट दबा रहा हुआ. सही में हो चुका है ये? हो चुका है ब्रो, बहुत ऐसा ये सीन रहते हैं. सो इट्स बट इट्स फन एज वेल, क्योंकि आई वेट, लोग बोलते हैं अरे घंटे का तो शो करने आ रहा है. यू टेक अ फ्लाइट, you go to the hotel, keep your bags, you go to the sound check, you come back, take a shower, get ready, go back to the venue, perform. Then you meet at least like 60-70 fans, जितने भी हैं वहाँ पे सबसे मिलना पड़ता है. And you can't be, no matter how tired you are, have to like have energy right there. Then you come back and you're just like out. Then you go to the next city, perform. Or whatever the next day is, take a flight. So, but it's, when I zoom out, it's fun. Like, I would not trade this day for me sleeping in my bed, for sure. Like, this is something I'm doing. Or no matter how tired I am, I don't know where I get that energy from when I'm on stage. मतलब मैं ऐसा dead हो सकता हूँ
शो से पहले लोग बोल रहे हैं भाई मत कर परफॉर्म, आज कैंसिल कर देते हैं, स्टेज पे चढ़ते ही एकदम फॉर 1 आवर माई बॉडी, आई डोंट नो, कुछ कहीं स्टोर करके रखती है बॉडी एनर्जी, क्या सीन है, बट आई सी लाइक आई फील people giving me so much love as well there. You know what I'm saying? Like I receive a lot of good vibration from them. तो मेरे लिए बड़ा ऐसा रहता है कि वाह, ओहो, इसी के लिए तो, यही तो सक्सेस है, और क्या है। सही बात एक है, घंटा ही तो है इसी को सक्सेस। चेस करते रहो, अभी आएंगे अब आ तो गए हैं, मतलब ये तो हो ही रहा है। हाँ, इट्स हैपनिंग। मैं आई यू नो देयर वाज दिस फीलिंग इनसाइड, अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे, I run a lot, like from my own self. बहुत मैं भागा हूँ अपने आप से भी, मास्क करने के लिए चीज़ें जो मैं दबा रहा हूँ। Then और it worked also for me for some time कि कुछ चीज़ मेरे को बॉदर कर रही है, मैंने दबाई, एंड उसको दबाने के लिए मैंने बहुत सारा काम कर लिया, which brought me a lot of wealth and like समझ गया, काफ़ी कुछ सेट हो गया, you know. तो इट वर्कड आउट ऑल्सो इन अ वे, पर वो चीज़ तो आ जाती है वापस ऊपर। या मैं समझ रहा हूँ कि अरे यार अब इसको इस इमोशन से डील नहीं कर सकते, एक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बड़ा आदमी बन जाते हैं। दैट्स गोना सॉल्व माय प्रॉब्लम, है ना। अब आप बड़े आदमी तो बन गए हो, लेकिन वो चीज़ कहती है मैं तो यहीं पे ही हूँ, आई हैव ऑलवेज बीन हियर। और इसका अपसाइड पता है क्या है, कि वंस यू बिकम लाइक अ पब्लिक फिगर, पीपल नो यू कांट मेक मिस्टेक्स। दैट्स एन अपसाइड, that you can't make mistakes. Like flip side, sorry. अच्छा, sorry, flip side. My bad. It's a flip side. कि you become like you make one mistake and people bash you publicly. Like they think like you are. See, look at like all the artists, like even actors when they come on podcasts. सॉरी बोल रहा है उसके लिए अपने जो पान मसाले के ऐड कर हाँ, दिए हैं। हाँ भाई क्या पता उसको अपने घर की EMI भरनी पड़ रही हो, तुम दे रहे हो क्या? यू नो, इट्स नॉट योर लुकआउट लाइक कौन क्या कर रहा है, तुम अपना देखो। तो पब्लिक के लिए ऐसा हो जाता है कि ये तो भाई ये कैसे, तूने ऐसे कैसे कर दिया। सारे इंसान ही हैं, गलती इंसान से ही होती है भाई, यू नो। सो यू डोंट हैव अ रूम फॉर एनी मिस्टेक्स। तो तुमने जो दबाया था पहले, अब वो ऊपर आएगा, यू नो, एंड यू गोना एक्ट अप somewhere like in a wrong place at wrong time कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे कैमरास हैं, and that thing triggered you and you just made a mess. You can come crashing down in one night. Your career can be over. Like it's very, that's why I'm saying there is a flip side to it. That's why I choose Goa to, like, मैंने लिया अपना time. मैं ऐसा नहीं था ब्रो, लाइक आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रिगर्स बिफोर विच ओनली अफेक्टेड मी। मतलब मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन किया है मैंने बहुत। अगर मैंने बहुत पहले ये चीज़ समझ ली होती तो आज मैं बहुत सही स्पॉट पे होता, बट देर आए दुरुस्त आए अभी समझ लिया। बट ये रहता है यार आर्टिस्ट का, यू नो, लाइक ये अंदर की चीज़ें और दबानी नहीं चाहिए। यू कैन फिक्स इट वाइल मेकिंग योर मार्क। ये नहीं कि ऊपर जाने के बाद समझ में आ रहा है। एंड आई वोंट नेम आर्टिस्ट, बट देर आर पीपल हु मेड इट लाइक बिग एंड देन फक्ड इट अप, यू नो। बिकॉज डॉक्टर ड्रे ने बात बोली थी, केंड्रिक उसके घर जाके पूछता है उससे, यू नो केंड्रिक, ऑफ कोर्स, केंड्रिक उसके घर जाके पूछता है उससे कि आई वॉन्ट अ स्पॉट लाइक योर्स, लाइक वेयर यू आर सिटिंग राइट नाउ इन योर करियर। तो ड्रे उसको बोलता है कि भाई यहाँ पहुँचना आसान है, एनी वन कैन बी हेयर, इट्स हार्ड टू कीप इट, सस्टेन दैट नंबर 1 पोजिशन फॉर डेकेड्स, दैट्स द हार्ड पार्ट। तो मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ अभी कि व्हेन आई रीच टॉप, अ लॉट मैन, अ लॉट। व्हाट डू यू गिव अप? Man, I gave up a lot. I gave up a lot of my peace of mind for a while. I gave up
my money also. I sacrificed my family time a lot. Relationships for sure, you know. और मैंने ये भी sacrifice किया कि मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ, मेरी गलती नहीं है यहाँ पे, फिर भी मैं ले लेता हूँ हार्मनी मेंटेन करने के लिए कि ठीक है यार मैं गलत हूँ, माँ चुदा तुम. हार्मनी मेंटेन नहीं. But I've seen that, फॉर माई cause I'm like मैं तुम्हारे साथ अभी अपना ये टाइम बर्बाद करूँ, इससे बढ़िया तो मैं कुछ कर लेता हूँ. टू गो sit on top, you know, because while you are wasting your time on some bullshit which जो मतलब 20 साल बाद मैटर भी नहीं करेगी चीज़, तुम उस पर अभी जब वो टाइम बर्बाद कर रहे होगे, कोई और घर पे बैठ के मेहनत कर रहा है तुम्हारा स्पॉट खाने के लिए. तो मेरी थिंकिंग वो है, whatever I do in a day, like it has to be I did something today, whether it's just like very simple things, spending time with family, it has to be like well spent day, ऐसा होना you're चाहिए. present there, ऐसा नहीं कि आधा दूरा यहाँ है वहाँ है. हाँ, और पूरी तरह होना चाहिए वो. अभी हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हम fully here. Yeah, I love it. I can sense it because मुझे ऐसा लगता है इन एक तो क्या होता है the biggest price of ambition is that आप सारी चीज़ें आधी आधी करनी शुरू कर देते हो. आपको लगता है ये सब ज़रूरी है वहाँ पहुँचने के लिए, आधे आप ये कर रहे हो, आधे आप वो कर रहे हो, आप कहीं के भी नहीं हो, एंड वो एंजाइटी ना डेवलप होनी शुरू हो जाती है. फिर आप बोलते हो आई नीड अ वेकेशन फ्रॉम माई लाइफ. भाई आपके एम्बिशन इतने ज़्यादा हैं, आप सब चीज़ें कर रहे हो, व्हाई डोंट यू जस्ट बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, व्हाई डोंट यू जस्ट फोकस ऑन वन थिंग एट वन टाइम एंड दैट्स इट. बहुत ज़रूरी है. स्केड्यूल बनाना भी आर्टिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा टाइम पता है क्या ख़राब करता है? फ़ोन. ऑफ कोर्स, लाइक योर वंस यू गेट प्रेजेस, यू नो, लाइक फोन पे वो नोटिफिकेशन आ रही हैं, डोपामीन हिट हो रहा है, फॉलोअर बढ़ रहे हैं, नाम आ रहा है, back to back, and like in the start it's really fun. of course, it's really fun, like to see like all the love you're getting is like yeah boy I made it. फिर थोड़े टाइम बाद रियलाइज होता है कि अब गांड मारने भी आ रहे हैं ना लोग. लाइक इट्स इनएविटेबल. जो प्यार मिल रहा है तो हेट भी मिलेगी. करेक्ट. मेरे को जब पहली बार मिली थी मैं बहुत कंफ्यूज था. मैं बोल रहा हूँ हु आर दीज पीपल, लाइक दे डोंट नो मी. तो फिर मेरे को बताया किसी एस्टेब्लिश आर्टिस्ट ने, ब्रो ऐसा ही होता है. लाइक तेरे को क्या लगता है भैंचो ये सारे चूतिया मेरे को जानते हैं क्या जो मेरे को हेट दे रहे हैं? मैं मिला हूँ क्या? मैंने उनकी गांड मारी है क्या जो मेरे को हेट दे रहे हैं? कुछ नहीं होता ऐसा. इट्स तो यू रादर नॉट बी अफेक्टेड बाय प्रेजेस ऑल्सो. कोई तुम्हें अच्छा बोल रहा है, हे मैन बिग फैन, मैं न्यूट्रल ही रहता हूँ अभी. थैंक्स यार, थैंक्स. हाँ, मैं बोलता हूँ मैं अभी अपना बहुत बड़ा फैन हूँ. यही मैं हमेशा यही आंसर है. स्थिरता मेंटेन करनी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जितना आदमी का ईगो चढ़ता है उतना उसको गिरा भी देता है. मैंने ऐसा भी देखा है. कभी कभी ऐसा होता है, अच्छा बड़ी मैंने कई बार देखा है, लोग लाइव अगर बहुत ज़्यादा मिल जाती है ना, छाती, ओ जी मैं हूँ कुछ, हाँ जी मैं कुछ. हाँ, बाद में पता लगता है वैन जो लीस्ट. देखो you spending a lot of time on your phone, you know, like as an artist, हमें लगता है हम छोटा सा एक, देखा जाए तो इतना. let's talk about money. मनी से मेजर. Your songs talk about money a lot. पैसा पैसा पैसा. मेरा रिश्ता बड़ा अलग है पैसे से. क्या है यार? मेरा I don't let money use me, I use the money. तो पैसे तो जेब में रखो. मेरे को सॉरी पंजाबी कम बोलने आती है, दिमाग से नहीं. मैं तो जब वो गाना सुन रहा था ना, अभी कल दोबारा से सुन रहा था, और मैं पैसे के बारे में सोच रहा था, यार पैसा तो इधर से ऐसे, किधर से कैसे ऐसे. I don't know how you do it, bro. Like, because you know money is also important. How can you not keep it at the center of your, especially once जब आपने आपके पहले गाने से, शो से आपने पैसे कमाए, okay, यार पैसा तो आ गया है, अब तो साला पैसा ही कमाना है. How do you not think about that? मेरे को शुरू से पता था प्रायोरिटी क्या है. बिकॉज मेरे को लोग अच्छे मिले थे स्टार्टिंग में. माई अनदर मेंटोर, वो मेरे को दोस्त बोलता है, मैं उसे मेंटोर बोलता हूँ कि तू मेरा मेंटोर है भाई. सो ही used to get like 1,000 rupees from a show. So it was me, 1,500, sorry. It was me,
another promoter with him and another guy for like opening act. मैं hype man था उसका. And he used to just like वो 4 हिस्सों में बांटता था, पैसे सबको देता था. 1500 रुपये. 1500 2000 जितना आया. स्टार्टिंग बहुत पहले की बात है, हॉस्कास्ट में हम करते थे. So that was my introduction to like how you distribute money among your own people, you know. तो मेरे लिए बड़ा ऐसा क्लियर था, this guy is like he can keep it to himself also. We can't say shit, you know, कि भाई तेरा ही शो है, मैं तो वैसे ही सीखने जा रहा था, मैं वैसे ही कुछ नहीं बोल सकता था. मैंने उसके बहुत शो खराब करे हैं. मेरे को ओवर हाइप कर दिया लोगों को. ओवर हाइप नहीं ब्रो, मैं भूल गया हूँ गाने बीच बीच में, मैं ब्लैंक हो गया हूँ. एंड आई एम सेइंग लाइक आई एम रियली सॉरी. इज लाइक पहले दिन पे स्नूप डॉग बनेगा क्या? Oh, that's very nice of him to encourage you very like nice that. of him, very nice of him. And so my relationship with money was कि यार पैसा important है, but लोग पहले ज़्यादा important है पैसों से ज़्यादा. तो कमा किसके लिए रहे हो वो डिसाइड कर लो. मैं आई वॉज हैप्पी विद लाइक लिविंग ऑन अ रेंटेड हाउस. मेरी मॉम ने एक दिन मेरे को बोला यार मेरे को नहीं रहना और रेंटेड हाउस में. मैंने कहा नहीं रहना, घर चाहिए अपना. कह रही हाँ घर चाहिए मेरे को अपना. मैं कहा ठीक है. उस दिन के बाद से मैंने येड़ भगा दी भाई. मैं उस दिन से चालू हो गया. अपने लिए नहीं कर रहा मैं ये. मेरी मॉम है, मेरी पार्टनर है, दे वॉन्ट अ सर्टेन लाइफ, दे वांट सिट समवेयर. मैं तो रह लेता हूँ ब्रो अच्छे बनियान में, मैं खुश हूँ. पर लाइक दीज थिंग्स एंड मेरे को मज़ा आता है करने में. लाइक केटरिंग माई लव्ड वंस इज like It's nice makes to be a me provider, you know. That's हाँ. as men, it's also your duty, you know. Yeah, मेरे को बहुत मज़ा आता है करने में. It's not like something I'm and it gives me energy and it makes me happy also. जिस मैंने बहुत सारे ऐसे दोस्त देखे हैं now that you know some of my friends are getting married. जैसे इनके बच्चे होते हैं ना, इनके अंदर एकदम बिल्कुल घोड़ा छाप आदमी होगा, ऐसे उभर के निकल के आता है कहीं से. मैंने ना ये काम सेटअप कर लिया, अब देखना. मैं भाई तुझे क्या हो गया ब्रो? इट्स जस्ट दैट ही हैड अ किड. Yeah. And now there is someone more important than him. The way these guys stabilize, bro. एनर्जी कितनी हो जाती है ना उनमें. मेरा दोस्त बैठा हुआ था गोवा में ही है, मेरा एक दोस्त है रवि. ही रन्स अ हॉस्टल. तो मैं उसके हॉस्टल गया, ऑफ सीजन था. लेदर काट रहा है ऊपर बैठ के, पता नहीं क्यों बैठा हुआ है. सब लोग जैसे ही बाहर गए कह रहा भाई बाप बनने वाला हूँ मैं. बोला क्या? मैं बाप बनने वाला हूँ भाई. उस दिन के बाद से अलग हो गया है. लाइक डिफरेंट एनर्जी ऑल टुगेदर. लाइक इज वेकिंग अप 7 in the morning, अपना 11 बजे तक काम वाम ख़त्म कर रहा है. लाइक इज डूइंग लाइक 5 things एट अ टाइम. जो कोई उसकी लाइफ में ऐसा है जो ज़्यादा उसकी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, या फिर हटा दिया. सब कितने लोग ऐसे हटा दिए जो मेरे को दिखता था पहले कि ये सही नहीं है तेरे लिए. ये पहले शर्मा शर्मी में हो जाता है ना थोड़ा. नहीं जी, एप्लीकेशन है, मेंटेन करना पड़ता है, समाज है, ये करना पड़ता है थोड़ा सा. अब समझ आता है. वो बोलते थे ना पापा, बाप तो बाप ही होता है भाई. if we can edit this out if you want. Like आपने अपने पापा की प्रोफाइल पिक्चर लगाई थी इंस्टाग्राम पे. अभी भी है, अभी भी है, हमेशा रहेगी. अच्छा. तो आपने कैप्शन में लिखा कि आप लोग you were just getting close with your dad, right? Like and you have rapped about your dad like several times. Like last year उनको गोवा में बहुत मजे आए. Like he had a blast, right? But are there any particular memories of him that you remember, maybe musically as an artist, that left with you? क्योंकि मैं my dad is alive right now. उन्होंने मेरे को एक चीज़ सिखाई थी जो अभी भी मेरे पास रहती है. उन्होंने मेरे को बोला था कि एक बार ऐसा हुआ था, घर पे खिलौना आया किसी के लिए, तो उनको 2 लाने पड़े, मतलब कज़न के लिए भी लाना पड़ा. तो बच्चे जेलस होते हैं. मैं कहा यार ये क्या है पापा, मतलब तो मैं तो आप मेरे पापा हो. तो उन्होंने बोला कि जो लदा हुआ पेड़ होता है ना, वो झुका रहता है. दैट इफ़ यू हैव एवरीथिंग यू शुड बी जनरस. मेरे को यार ऐसे पता नहीं था. एवर सिंस हमारा हाथ खुलना शुरू हो गया लोगों की तरफ, ऐसे कि 2 ऐसे नहीं कर सकते. बट फॉर यू, फॉर योर डैड, व्हाट आर सम थिंग्स दैट यू रिमेंबर दैट? Man, selflessness. Last 5 years. So, like, all my life I hated him because he was on and off from our life. He never drank, never had affair,
कुछ गलत काम नहीं कर रहे थे वो. He was working to give us like a good life, but far away from us, like out of contact. And then he couldn't give us that life he expected he will give us. दूर रह गए. तो मेरे को वो नाराज़गी थी उनसे बहुत कि यार तुमने लाइफ लाइक ये बहुत कीमती समय था, बचपना, होने चाहिए थे साथ में. And I understood like later on that he also lost his father when he was 14. And he started working. He had like उनके 3 भाई और 2 भाई और 1 बहन. उनकी शादी करनी, उनको बड़ा करना. So he was the eldest. हाँ. वो सब किया, फिर मेरे को बड़ा करना. और आई एम श्योर मेरी गांड फट चुकी है ब्रो, 30 का हूँ मैं अभी. ये करते करते आई एम श्योर उनको कितना एनर्जी डालना पड़ रहा बात भी नहीं कर सकते किसी तरह, जैसे आज हमारे जनरेशन में खुल के बात कर सकते हैं चीज़ों के बारे में. एग्जैक्टली वही. एंड लास्ट ईयर माय चाचू कमिटेड सुसाइड. तो उन जो बहुत क्लोज थे उनके. एंड दिस दैट वाज आल्सो जनरेशनल ट्रॉमा, बिकॉज बोथ दीज ब्रदर्स डोंट नो हाउ टू रेज किड्स, बिकॉज उनके भी डैड नहीं थे. तो उनको पता नहीं है लाइक हाउ टू डू दिस, तो उसके चक्कर में मेरे साथ बहुत सारे डैडी इश्यूज हैं, विच लेटर ऑन लाइक अभी रिसेंटली व्हेन ही वाज इन गोवा, वी हैड अ रियली like the worst fight I ever had with my dad, and it ended up in a conversation, like really intense, really deep conversation, and I'm glad like I had that conversation with him. तो वो सारा ऐसा हल्का हो गया कि like I told him both sides, like I told him like how I felt, like I told him like मैंने नशे करने चालू कर दिए थे while you were away, and he was not surprised, like he was like not surprised at all. I'm like कुछ तो सीन है, like he knew कि क्या हुआ. And he also said like I knew what I did wrong, but like from last 5 years he didn't spend a penny on him. Like मतलब मैंने तो नहीं देखा जब से मेरा करियर बूम हुआ है. I gave him money, I gave my mom money, like हर महीने देता हूँ मैं, like ऐश करो. But he never spent it. He never bought anything. Like bro, 1 रुपए की चीज़ नहीं खरीदी, खाना भी नहीं खरीदा अपने लिए पिछले 5 साल में. Whatever he bought, like he gave it, like घर के अंदर लेके आते थे, like बनाओ खाते हैं सब, जो भी था. So that selflessness, like towards the end, one thing he told me is like किसी के नीचे सिर दे के काम मत करियो. That's the last advice he gave me, and that's what I'm carrying on right now. Like सिर दे के काम करना मतलब किसी के नीचे सिर दे के काम करना मतलब कभी कभी हम ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं कि हम फंस जाते हैं लोगों के नीचे. हाँ, कोई बॉस बन जाता है टेम्परेरली, और हाँ गलत तरीके से दबा रहा होता है. हाँ, गेम्स भी खेलते हैं ना लोग बहुत ज़्यादा. स्पेशली दिस इंडस्ट्री इज फुल ऑफ गेम्स, यू हैव टू मनूवर. तो मेरे डैड ने वो देख लिया था. ऑल्सो ही ऑल्सो सीन लाइफ इन फ्रॉम 14 to 52 years. Like he was working, and he saw betrayal in families, like close ones, and like making friends who are far off. Like तो उन्होंने भी बड़े अलग अलग तरीके. And he also traveled a lot. मतलब he was living in Sikkim. वहीं से मेरे को भी मिला है ये. Like I drove from Goa to Ladakh. Crazy. मेरे को कितने दिन लगे? It was total 25 days का ट्रिप था. हर शहर में, स्टेट में रुक रुक के. हाँ, बॉम्बे रुके, उदयपुर रुके, फिर दिल्ली रुके, फिर सीधा पार्वती वैली, फिर एक दिन और सरचू रुके, फिर लद्दाख पहुंचे. That's such a cool way. मतलब और कोई ऐसी भी गाड़ी ले रखी थी? नहीं, स्विफ्ट डिजायर ब्रो, मेरी अपनी स्विफ्ट डिजायर में लेके 25 दिन. ये सेकंड दूसरे साल किया हमने फिर से. Like every year, next year we are thinking to go to Bhutan, like drive. यार आप तो बड़े फैमिली मैन टाइप के हो. हैं? आप तो बड़े फैमिली मैन टाइप के हो. हाँ ब्रो, मेरे को बहुत मजा आता है फैमिली के साथ. Like taking care of them is like the ultimate goal, man. I don't do after parties. मतलब मेरे को नहीं देखोगे आप दारू पी के हंगामा करते हुए. I don't have a entourage.
I think it comes from self-awareness. Maybe the time you spend Of course. has, you know, जैसे Definitely. once I came back from my vacation, मेरे इतना लंबा वो नहीं था, but I realized कि यार इतने सारे इवेंटों में मेरे को ऐसे बुलाते हैं और मैं जाता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ वहाँ जाके, लोग मिलते हैं, हाय आई लव योर स्टफ में बोलता हूँ, आई लव योर स्टफ में हाथ मिलाता हूँ, फिर यही होता रहता है। और दिल्ली ऐसी है कि अब लोग मिलते ही रहते, फिर आप वही रात के 3-4 निशाचरों को देखते रहते, बोलते यार अब अगर जाएंगे ना एक वीडियोग्राफर लेके जाएंगे ताकि हम इसको इंस्टाग्राम पे डालें। ऐसे नहीं जाएंगे, बिल्कुल मैं अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता खामा का हेलो हाय करने के लिए। मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ अगर बैठ के, तो मुझे रैंडम नेटवर्किंग से जो काम नहीं होगा वो वैसे ही मिल जाएगा। देयर गोना अप्रोच मी, राइट? डेफिनेटली मैन, लाइक यार 5 साल रहना जरूरी होता है शहर में, मेरे को ऐसा लगता है 5 साल की नेटवर्किंग होनी चाहिए। फर्स्ट 5 years यू डिड नेटवर्किंग इन योर करियर, उसके बाद गायब हो जाओ, देन यू डोंट, आई डोंट थिंक यू नीड इट नाउ। लाइक अब तो हो गया। आपसे कैसे मिलता वो तो IFP में मिल लिया। IFP तो हमें दोनों को बुलाया गया था। इट वाज वर्क। हाँ एग्जैक्टली। सो मैंने ये रूल बनाया था 2023 के स्टार्ट में, 1 January 2023। आई एम लाइक, इफ आई एम गोइंग आउट ऑफ माई हाउस आई एम गेटिंग पेड। फैंटास्टिक, सिंपल। और वो मैंने पूरा साल फॉलो किया है। अभी लास्ट के 2 महीने बचे, अभी तक कर रहा हूँ। Either I'm getting paid or I'm doing such important work that I have to get out of the house. I think that's a very important boundary to draw, because कई बार randomly लोग ऐसे जाते रहते हैं, टाइम वेस्ट करते रहते हैं अनडिसिप्लिन्ड तरीके से। कोई पार्टी करने, I live in Goa and lots of my friends come to Goa. I live there. They come for vacation. तो वो उनको लगता है कि यार चल मेरे साथ कर, अब वो आते हैं, फिर one set of people come and then other set of people come like अगले महीने। तो I'm like, bro, I can't do this. I live here, like this is my home. I'm not going out for party. तुम जितना मर्जी मेरे को peer pressure कर लो, I'm not coming. So now they don't. अब उनको पता है आता ही नहीं है। I'm like, मैं सबसे बोरिंग आदमी हूँ उस दुनिया का। मान लो ये, मैं निकलता ही नहीं हूँ घर से बाहर। I have this new hobby of doing carpentry. है? हाँ, तो इंडिया में blue collar work, it's like क्या बात है यार। हाँ bro, like I loved it, like the flow of it, it has a craftsmanship. Are you building something? हाँ, मैं स्टूडियो बिल्ड कर रहा हूँ अभी दोबारा से। Using your own carpentry skills? Yeah. Crazy. I made like a different, मतलब upcycle किया है जो घर पे पड़ा हुआ था पहले से ही। उसको got the drawers and made like a wall art out of it. Yeah. तो अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहा हूँ मैं, and it's a good activity for me, like from 7 to 11, like 4-5 hours in the morning. It's a good workout. 7 to 11 you're just doing carpentry? Yeah. Fucking love it bro, you're living the artist's dream. Yeah man, it's a good thing man. Like मेरे को starting में ऐसा होता था भैंचो कितना काम बचा है. So basically I started it as कि कोई और मिल नहीं रहा. अच्छा, गोवा में ये हैंडीमैन की बड़ी दिक्कत होती है। बहुत दिक्कत है ब्रो, बहुत दिक्कत है। सो वन ऑफ माय फ्रेंड्स, लाइक गोरा बंदा है, जे, ही हेल्प मी आउट। ही इज लाइक, आई विल टेक योर टेबल अपार्ट एंड लाइक विल। अमेरिकन है? ही इज साउथ अफ्रीकन। अच्छा, साउथ अफ्रीकन। अमेरिकन्स आर नोटोरियस विद दैट। हां, ही वाज आल्सो लाइक, दे हैड कारपेंट्री इन देयर स्कूल, लाइक उनका सब्जेक्ट था कि ये तो तुम्हें आना ही, लाइक बेसिक लाइफ स्किल्स वाज इन देयर स्कूल कि ये तुम्हें आना ही चाहिए। So he knows like how to do it, like he got the tools, then I ordered the tools, like okay ये मेरे पास है ही अब। तो मेरे घर में जितना भी था गार्डन में जो लकड़ियाँ पड़ी थी, I varnished it, sand किया उसको। Now these are my art pieces for the studio. And do you play music in the background, if it like without music? Without music mostly. 4-5 hours you're just carpentering. हाँ, without music man, because music तो पूरा दिन करना ही है उसके बाद। हाँ। और कौन सी बड़ी वाली आ रही है जो कारपेंटर वाली होती है, वो हैक्सॉ है? हैंड सॉ है, बट आई लाइक डूइंग इट लाइक गेट अ सैंड पेपर एंड डू इट विद हैंड, बिकॉज़ देन यू गेट लाइक अ फाइन फिनिश ऑन द फिर, देन यू डू दिस। आई लाइक ब्रो, आपका YouTube एल्गोरिथम तो क्रेजी होगा, यू मस्ट वॉच दीस थिंग्स ऑल डे। नहीं, मेरे को लाइव सिखाया गया है ये। अच्छा, ओके YouTube पे नहीं देखा है। ओके, या वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज़ आई नो कि आई रेड दिस बुक, मैं उसका बंदे का नाम भूल रहा हूँ, डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। फैंटास्टिक बुक। ओके, वो सोशल मीडिया के खिलाफ है। ही इज अ प्रोफेसर एट जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर साइंस का। इज लाइक मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, मेरे को अपना ग्रे मैटर पे पहुंचने के लिए ना, आई डोंट नीड टू बी डिस्ट्रैक्टेड बाय द इनपुट ऑफ अदर्स। कहता है सोशल मीडिया पे सबका इनपुट आता रहता है, हमारी
जो उसने मेन बात करी उंगलियों के बारे में और कारीगरी के बारे में, हमारी उंगलियां बनी है बढ़िया बढ़िया खूबसूरत चीज़ों को नकाशने के लिए, कारीगरी करने के लिए, हम उससे ठट 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 करते रहते हैं इस पे फ़ोन पे। इन उंगलियों से जिन्होंने इतनी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, देर केपेबल ऑफ मोर, सो यू शुड यूज योर फिंगर्स, हैंड्स फॉर क्राफ्टमैनशिप, योर बॉडी फॉर क्राफ्टमैनशिप, एज अपोज टू प्रेसिंग समथिंग ऑन। आई वाज लाइक ब्रो डैम, इतना ब्यूटीफुल डिजाइन है बॉडी का, लाइक ही इज राइट, बिकॉज हाथ बहुत कुछ कर सकते हैं, एंड लाइक दिस डिफरेंशिएट्स अस फ्रॉम अदर स्पीसीज। करेक्ट। लाइक मछलियों के हाथ होते तो वो भी कुछ बना रही होती है, अभी अभी नहीं है इवन उनके कुत्तों पास। के, बिल्लियों के हाँ, पॉज होते हैं, paws, they can't use it like we yes, can, yeah, हाँ, वी कैन डू प्ले आर्चरी, मतलब हम Yeah. क्या कितना कुछ कर सकते हैं इससे ना। yeah. Or you can up, like when you run the studio, you do keys as well, right? Yeah. You can do that, play music, pull someone. It's so remarkable how we have these hands. मतलब मैं तो अंगूठियां बहुत पहनने की ट्रिप कोशिश मारता करता हूँ, हूँ। बहुत हाथों ट्रिप पे? मारता हूँ मैं ब्रो। लाइक लुक एट द डिजाइन ऑफ दिस, लाइक दीज ये हाथ की लकीरें, हाँ, सबकी अलग अलग रहती है। मैं जो क्या ट्रिप है ये, मैं तो बहुत बड़ा trip दुखी होता था बचपन में कि मेरे में वो वर्ल्ड कॉन्करिंग वाली लाइन नहीं है जो बीच में से आती है। मेरे पास है है ये वाली Damn, ना। bro. हाँ, नहीं, एक लाइन है जो बीच में से कट के आती है सब लाइनों में, ये यहाँ से ऐसे आ रही होती है। You got it, you got it. वर्ल्ड कॉन्करिंग, I'm gonna conquer the world। एक्चुअली इट्स अ लक लाइन, पर इस पे भी एक वो वाला है कि नेपोलियन को किसी ने बोला कि भाई तेरी तो है नहीं, तो चाकुलियाँ बना दी। तो ऐसा भी होता है, ये भी कह जा सकता है। ओके, अगर आप चाहो तो थोड़ी जैसे लिप फिलर करा लेती हैं लड़कियां, ऐसे आप भी एक उंगली काट के लो जी। so he was the first influencer, by the way, huh? सॉरी, He was the first Napoleon, influencer। 100% bro, 100%. For someone, he's a big time war strategist, Yeah, cool of guy. course। मतलब मैं सोचता हूँ what it must be to be in the minds of Alexander and Napoleon, से दुनिया मेरी है and do it, like क्या आपकी पेडिग्री होगी, क्या आपकी सोच होगी, क्या आपकी मिलिट्री स्ट्रेटजी, क्या आप दुनिया पे कब्जा कर लो। I love studying conquerors like that. Yeah, because they had less distractions back then। Population कितनी कम थी उस टाइम to conquer। Now people have strong ideologies, सबके आइडियाज, लाइक उनको, हमें लगता है कि हमारे अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी नहीं है, सोशल मीडिया से आई हुई, लोग घूमते घूमते आई है हमारे पास। बट लाइक सबका अपना एक लाइक पर्सपेक्टिव बहुत ऐसे सॉलिड हो रखा है सबका, फिक्स्ड। अर्लियर इट वाजंट लाइक दिस। लाइक लुक एट आवर लास्ट जनरेशन, व्हेन यू टॉक टू योर मॉम और योर उनकी पिछली वाली पीढ़ी से भी, दे ऑल्सो हैव अ फिक्स पर्सपेक्टिव, ऐसा नहीं है, बट सबका बहुत सिमिलर है। You know what I'm saying? Like they have, because they were more interacting with each other like face to face. As opposed to here. Bro, ये scientifically proven है. Nowadays, us like this generation consumes information that our grandparents they consumed it in a lifetime. We consume it in a day. The access to information, like जितना हम दिन में देखते हैं, उनको पूरा लाइफ टाइम लगता था to experience those puppies playing, to experience like travel, like कि अरे ये भी तो है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है। For them they had to actually travel to other place or see a photograph which is not moving. There's some effort, so you value the moment more. Of course. When there is no effort and it's all given to you, आप क्या करते हो? मुझे आता है जीत ठाइल ने गोवा के बारे में बड़ी अच्छी एक बात लिखी है कि गोवा यू कैन सिट, और आप कीचड़ पे बैठे हो, अपनी वो चेयर लाए अपने गार्डन में, एंड यू कैन जस्ट सिट एंड यू कैन वॉच द पपीज प्ले एंड फॉल, और शाम हो जाएगी। और आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इतनी ज़्यादा बढ़िया हो जाती है ना, आप ये भी नहीं कह रहे ओ मैं गोवा आया हूँ अब मेरी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़िया हो जाएंगी। लाइक इट्स जस्ट कि आपके स्टिमुलस कम हो जाता है ना इतना ज़्यादा, दैट यू कैन एक्चुअली डू थिंग्स दैट पीपल फ्रॉम सेंचुरीज हैव डन एंड रिटन अबाउट इट, टॉक्ड अबाउट इट। In cities, that's not, you can't do that, I think. Observation is really important, man. Like that's I think that's a key for your well-being. जब हम बहुत ज़्यादा खज्जल हो जाते हैं दिमाग के अंदर, sometimes like it's better to like take a step back and just observe what's happening. मतलब मैं एक नदी के किनारे बैठा था, I think it was in Kashmir or something. मैं ऐसे बैठ के देख रहा था, एक पत्थर पे एक मच्छर है
जो दूसरे मच्छर को बजा रहा है. लाइक लिटरली एक मच्छर डूब रहा है आधा पानी में और दूसरा मच्छर उसका हाथ पर, जस्ट लाइक एनी ह्यूमन बींग्स. एंड आई एम जस्ट लाइक observing this, and he got that guy out, like he shaked himself off, like, and then they both flew off. And it was just like 30 seconds to 1 minute उसके बीच में ही हुआ है. Just like observing this, how similar like the whole situation was to, like, it's metaphoric in its own way. And अगर मैं वो ऑब्जर्व नहीं करता और मैं अपने किसी ख्याल में खो जाता तो वो रीसेट नहीं मिलता मेरे को. जो मैं इतना ट्रैवल करके उधर गया था रीसेट लेने. नहीं, वहाँ जाके भी लोग करते हैं यार, अभी तो ना वहाँ फलाने वाटरफॉल पे. हाँ, अपने वहाँ वो होता है ना, ऐसे तुम चले गए इतनी बढ़िया लोकेशन पे, बस यही है यहाँ पे, बस यही है यहाँ पे, वह जो देख नहीं रहा भाई क्या है कुदरत का नज़ारा, बस इतना तो कुछ है ही नहीं सी. हाँ. चलो वापस होटल चलो. नहीं, कुछ लोग ऐसे डिसमिस कर, कुछ नहीं है, एक झरना सा है, 4 लोग बैठे हैं, कुछ नहीं, घर पड़े रहो अपने. भाई देखो, आप घर पड़े हो तभी आपका इतना रिजिड वर्ल्ड व्यू है. बाहर निकलो, दुनिया से मिलो. आई थिंक ट्रैवल ऑल्सो मेक्स यू लाइक अ बेटर स्टोरी टेलर. ये तो इब्न बतूता भी कहता है. आप कुछ कहने को, आप 4 लोगों से मिले हो जिनकी आप वेशभूषा अलग है, रंग अलग है, भाव अलग है, कल्चर अलग है. भाई हम लोग ये नदी वाला सीन हुआ. दिस वाज 10 in the morning and then I think by 3 I found another spot. कश्मीर इज ब्यूटिफुल. और हम थोड़ा सा और ऊपर पहाड़ चढ़े. वी फाउंड दिस वन बिग एस रॉक जिसके अंदर से पेड़ निकल रहा है और उस रॉक से देयर वाज अ बिग लाइक रिवर फ्लोइंग फ्रॉम टॉप ऑफ द माउंटेन. उसका व्यू था. सो वी सैट देयर फॉर अ वाइल. तो हमारे आसपास भेड़ बकरियाँ आ गई अभी आउट ऑफ नोवेयर, लाइक बहुत सारी. एंड देन देयर वाज अ शेपर्ड. ही केम सैड. इज लाइक हाँ कहाँ से आए हो तुम लोग, बताया मैंने उसको. देन ही सैड लाइक नेक्स्ट टू मी. नीचे बैठ गया वो ऐसे ही. वो भी एक पहाड़ देख रहा है, मैं भी एक पहाड़ देख रहा हूँ. तो वो मेरे को बोलता है नीचे तो सब सही है ना, मतलब शहरों में. मैं बोला हमको लगता है यहाँ सब सही है. You know? It was just a very genuine conversation between us, like me and him, and we started conversating. I'm like, भाई भ्रम पता है तेरे को क्या होता है? बोला हाँ पता है. मैं कहा नीचे ना बहुत अलग अलग प्रकार के हैं. शहर में बहुत अलग अलग प्रकार के भ्रम है जो तू तोड़ते 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 पागल हो जाएगा. ये असलियत है जहाँ तू अभी बैठा है. वहाँ फ़ोन, उस गांव में फ़ोन नेटवर्क नहीं है और दे आर ड्रिंकिंग क्लीन वाटर. विजुअली व्हाट दे आर सीइंग एवरी डे इज वेरी लाइक तुम्हारा. वो दिख रहा था, उससे बात करके मेरे को दिख रहा था. He was calmer, more present. More present. He was poor. Like उसको लग रहा है कि वो गरीब है. मेरे को नहीं लगा. वो तेरे पास दुनिया की बहुत बड़ी दौलत है. मेरे को तो ऐसा था उसके लिए. बट ही वॉज नॉट सैड कि उसके पास पैसा नहीं है. ही न्यू हिज कंडीशन कि यार. फिर मैंने उससे पूछा टाइम तो तुम पता कर लेते होगे ऐसे ना, मतलब सूरज देख के कि कितने बजे हैं. बिकॉज मैं देख रहा था शैडोज कैसे पड़ रही हैं. लाइक मेरा बहुत रहता है उस चीज़ों पे ध्यान. तो 3 बजे का टाइम इज यू डोंट शूट यूजुअली बाय 3. लाइक मैं शूट वगैरह भी करता था पहले. तो दैट्स द हार्शेस्ट लाइट. लाइक यू डोंट, it's directly on your head, right? हाँ 12 to 3 वाला टाइम इज नॉट लाइक इट्स बैड लाइट. बट इन कश्मीर इट वॉज लाइक ब्यूटिफुल. लाइक क्या शैडोज पड़ रही है. आई एम लाइक दिस इज सिक. तो मैं उससे ऐसे ही पूछ रहा था कि तेरे को पता लग जाता है ना टाइम का. इज लाइक दिन में तो कोई सीन नहीं होता, रात को प्रॉब्लम रहता है. और यहाँ पे शेर वगैरह भी आते हैं एंड इनकी भेड़ बकरियाँ हैं वो उठा के ले जाता है बीच बीच में ना. इज लाइक तब दिक्कत पड़ती है. देन अगर रात को ज़्यादा लेट हो रहा है दे कांट गो डाउन, यू नो, दे शुड नो व्हाट टाइम इट इज़. तो मैंने उसको अपनी घड़ी दे दी और मेरे को बहुत पसंद थी वो जी शॉक. तो मैंने उसको लिया. मैंने कहा ले अब से तेरा. कह रहा इसकी कीमत क्या है. मैंने कहा इसकी कीमत तेरी ज़िंदगी है. तो वो एकदम से ऐसा हो गया क्या बोल रहा है भाई. मैंने कहा बस ब्रो टेंशन मत ले, अब शेर तेरे को खाने आएगा तो पहले टाइम देख लियो. कह रहा ब्रो थैंक्स मैन. मैंने कहा सही है कोई सीन नहीं है. एंड जस्ट लाइक दैट
one conversation I can't imagine like having it here. Just उस conversation में बहुत ठहराव था. It's just conversation for conversation's sake. मैंने नाम उसको मेरा नाम नहीं पता, मेरे को उसका नाम नहीं पता. हम बस उतने टाइम के लिए मिले, वो 10 मिनट के लिए, उतने ही हमारी कॉन्वर्सेशन थी. दैट आई थिंक ही विल ऑल्सो रिमेंबर फॉर लाइफ, आई विल ऑल्सो रिमेंबर फॉर लाइफ. मैंने एक बड़ा अच्छा शायद ऑस्कर वाइल्ड का कोट पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि दोस्त पसंद नहीं है, जो स्ट्रेंजर्स की प्यार है मेरे को ज़्यादा पसंद है वो. एक पल एक्सचेंज कर लिया, जैसे किसी के साथ मिलके यार आपका ये बड़ा अच्छा लग रहा है, जो भी कुछ है अच्छा बढ़िया क्या है, एंड देन देयर इज नो ट्रांजैक्शनैलिटी की आपका इंस्टाग्राम है कोई कैन बी नथिंग, जस्ट ह्यूमंस पासिंग बाय लाइक द वे इट शुड बी, फ्लूइड, एफर्टलेस वही होना चाहिए. एंड दैट्स हाउ आई बिल्ड ऑल माई रिलेशनशिप्स. जब मेरे को ये समझ में आया था कि योर रिलेशनशिप्स हैव टू बी, ऑफ कोर्स देयर इज वर्क, बट जो इनिशियल कनेक्शन होता है ना, इट हैज टू बी एफर्टलेस. कि तुम किसी से कनेक्ट करके देन यू पुट इन वर्क. हर रिलेशनशिप में डालना पड़ता है, बट कनेक्शन तो नेचुरली बनना चाहिए, वो फोर्स नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि यार हम दोनों सेम काम करते हैं अब इससे दोस्ती की जाए. मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि यार इससे अब जाके हम दोस्ती स्ट्राइक करते हैं. आप एक मंगते की तरह कुछ मांगने जा रहे हो, हाँ इसकी दोस्ती लूंगा अब जाके, एंड आई थिंक दैट्स द पूरेस्ट अप्रोच यू कैन टेक. अगर वाइब बन गई तो बन गई, बहुत बढ़िया है. नहीं बनी सर नमस्ते, आपसे अच्छा लगा मिलके. और ऐसा भी नहीं यार कि यू डोंट हैव टू यूजुअली टेल पीपल की गार्ड मरा जल. ऐसा नहीं, जरूरी नहीं हर बारी बोलना है ऐसा. चूतियों लोगों को बोल सकते हो, बट व्हेन आई डोंट टॉक ऑन फोन. यू डोंट टेक कॉल्स. आई टेक कॉल्स, वर्क कॉल्स, जब काम टू काम रहता है. इवन विद माई मैनेजमेंट आई टेक वर्क कॉल्स. जब मैं पर्सनली मिलता हूँ तो मैं टाइम स्पेंड करता हूँ. लाइक आई ट्राई टू हैव, हाँ, फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन. वो ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को. एंड आई हैव फ्रेंड्स लाइक हु इन द सेम, हु परस्यू द सेम प्रोफेशन. हम लोग बात नहीं करते हैं फ़ोन पे, पर जब हम मिलते हैं तो लाइक देयर इज़ both sides, both parties knows, like I know, they know this is real. Like I don't want anything from them, they don't want anything from me. Like it's just, भाई तू कैसा है, like how are you, घर पे क्या चल रहा है, सब सही है, like how are you mentally. वो ज़्यादा ज़रूरी होता है rather than कि यार इसके साथ करके ना 4 व्यूज एक्स्ट्रा मिलेंगे. यू नो, लाइक दोस स्ट्रैटेजीज, दैट्स नॉट द आर्टिस्ट जॉब. नो, एन आर्टिस्ट शुड नॉट थिंक अबाउट हाउ कैन आई गेट अ बिगर ऑडियंस. इट्स नॉट, हमारा जॉब ही नहीं है वो. आर्टिस्ट जॉब इज टू क्रिएट, एंड आई लव दिस जॉब. एंड यू शुड वर्क विद पीपल हु, जो बिजनेस साइड पे लोग रहते हैं, they should also work with people who love their job. जैसे तुम अपने जॉब से प्यार करते हो, वैसे तुम्हारे मैनेजमेंट को भी अपने जॉब, वो तो अपने जॉब से बहुत प्यार करते हैं. मेरा मैनेजमेंट तो खैर मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड ही है. बस भाई. ये तुम तो बहुत लकी हो. हाँ, आई थिंक आई एम जनरली लकी बिकॉज आई रियलाइज्ड कि यार शायद मुझे एक भेड़ बकरी की तरह ट्रीट नहीं होना. मेरे को एक इन्फ्लुएंसर का करार देके कि हमारे रोस्टर में ये 100 बंदे हैं, इनमें से एक दोस्तकास्ट भी है, इसका ये रेट कार्ड है, ये इसको यहाँ से वहाँ भगाना है. मुझे चाहिए था मुझे कोई परेशान ना करे, मैं क्रिएट कर पाऊँ फुर्सत से, और जब मुझे बात करनी है अपने दोस्त से बात करूँ, भाई ये मैटर है देख ले. एंड श्योर इज नॉट मुंबई बेस्ड, ही डजंट हैव द बिगेस्ट कॉन्टैक्ट्स, बट यू नो आई मीन गाड़ी चल रही है हमारी, ठीक ही चल रही है. अरे ब्रो, तो कॉन्टैक्ट्स, सी मेरा फ्लिप साइड है इसको देखने का. योर कॉन्टैक्ट्स, when people say I have contact, मेरे को किसी और का कॉन्टैक्ट बनना है. लोग ऐसे बोलना चाहिए, we know this person. समझ रहे, इतना काम कर लो कि वैसे you are in other people's, हम जानते हैं इसको, like we are in touch with them and we can get some work done. और वैसा ही रहना चाहिए, you know, like your work should speak for itself. काम होना चाहिए बढ़िया, बाकी मजे करो जिंदगी में. I agree with that. Yeah, man. And again, you know, you were with Azadi Records for several years, I think 2019 when we saw the show. You came out. How has this phase been like, going away from management and coming with someone else? And भाई देखो, मैं आज़ादी के बारे में तो कोई बात नहीं करूँगा.
DHH paces, No more content for you motherfuckers. बट मैं नई मैनेजमेंट के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा. लाइक दे मेड माई लाइफ वेरी ईजी. लाइक इट्स वेरी ईजी गोइंग. I'm not stressing about I don't go to office anymore. Like it's not my job to sit in an office with people to work and all. Office? Why do you have to go to an office? आप स्टूडियो में नहीं काम करते? करता स्टूडियो में करके जाता था ऑफिस. अच्छा. अपना काम खत्म करवाने. So I don't do that anymore. You know, like they treat me as an artist. They give me that space. You are an artist. मैं भूल गया था कि like थोड़ी बहुत ईगो रखनी जरूरी है. लाइक ऐसा भी नहीं कि मैं जो मेरे डैड बोल रहे थे सर नीचे देके काम नहीं करना किसी के. सो दैट थिंग इज नॉट देयर एनी मोर. प्लस दीज आर वेरी वार्म पीपल. सो दे अंडरस्टैंड लाइक हाउ टू स्पेशली ट्रैवलिंग when we are doing shows or I'm recording with other people. Like it's smooth. It's very like hassle free. और it's not like they are taking that hassle on themselves. hassle होता ही नहीं है because it's smooth, like they know how to operate. तो मेरे लिए बहुत refreshing है and I'm enjoying this. I have space for more things in life. I have space for spending time with family. Congratulations on curating boiler room. Yes, sir. क्योंकि हम प्रखर की बात कर रहे थे, शाउट आउट टू प्रखर. उसने मेरे को बोला, मैंने प्रखर को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा मैंने दुनिया की हर एक चीज़ जो मेरे को प्रभदीप से बात करनी है ना, मैंने वो खोज कर निकाल ली है, ठीक है. एंड पर तू एक बहुत बड़ा ऐसे लाइक ही इज़ लाइक आई गेट लॉट ऑफ माई म्यूजिक फ्रॉम हिम बिकॉज ही नोज जिस तरह के गाने वो सुनता ना, ही इज़ ऑलवेज बीन लाइक अ क्यूरेटर इन द बैक. इज़ लाइक मैंने उसका अटेंडेड हिज क्यूरेटेड बॉयलर रूम. लाइक बहुत मज़े आए एंड यू शुड डेफिनेटली आस्क हिम अबाउट दैट. I said, okay. And then went to your profile on Instagram. It says like, I'm curating this one myself. It's like crazy. And what a fantastic lineup. What was that like for you curating? Ab to you're performing as well, right? But like you're putting the lineup together on a super top. मतलब एक कितना जाना माना प्रसिद्ध IP है. लोग अपने YouTube पे 8 साल पुराने बॉयलर रूम बना के ऐसे चिल करते हैं कि भाई बॉयलर रूम सुनना है इसका. What was that like for you setting it up? मेरे लिए तो रिडेम्पशन था. हाँ, ऑफ कोर्स मैन. लाइक मेरा ऐसा हो गया था बिकॉज आई वॉज नॉट सीन बाय एनीवन फॉर 3 years. लाइक मेरे को इतना कहीं डाला नहीं गया. लाइक आई वॉज नॉट अप फ्रंट फॉर कपल ऑफ ईयर्स. मैं कोई फेस्टिवल नहीं बजाया, कोई और बुकिंग नहीं ली, विच आई वॉज लाइक मैंने सहन किया वो बहुत ज़्यादा. इट वॉज अ हैवी लोड. एंड देन आई गॉट दिस. आई एम लाइक अब तो ब्रो, like it's my time to show my skill set, also my taste. You've got impeccable taste. Yeah, I acquired it. Like this. You're not born with it. No. Like some of us in the world, right? कि आपको it's so much better when आपको थोड़ा सा दिया रहता है और आप खुद बाहर जाके acquire करते हो. हाँ, yeah. And I knew like I never had like the surrounding I was in. Nobody had this kind of taste. आपको थोड़ा एक्वायर किया मैंने. एंड इट केम ऑन अ वेरी एग्जैक्ट लाइक राइट टाइम जहाँ पे आई वॉज एक्चुअली रेडी. आई न्यू हू टू पुट ऑन द लाइन अप. यू नो, it was a 1 month process of like going back and forth with the team. That was also hassle free. नहीं तो usually when you work with like big IPs, it's a lot of work. Yeah. You know, like you have to go back and forth in the sense like there is a lot of arguments, like disagreements over things that turns into like this weird feeling. Resentment हो रही होती है दोनों तरफ से. हाँ, तो बड़ी वो weird feeling रहती है. मेरे को तो बहुत रहती है. Then it's no fun to do your work. हाँ, this was fun. Like this was really fun. और Ayush, who's managing me, he knows like when to come in a chat and like say shit. तो उसको पता रहता है कि अभी उसकी बारी है बोलने की. Strategic violence. Good cop, bad cop. हाँ, ठीक रहता है. वो दूसरी साइड से भी ऐसे चलता है. हाँ, हर सबका ऐसा चलता है. गुड कॉप, बैड कॉप. एंड ऐसा भी नहीं हम एकदम ही बैडेस्ट कॉप है. लाइक देयर आर सम थिंग्स व्हिच हैज टू बी ओके. लाइक यू बैलेंस इट आउट. समटाइम्स आई कम इन एंड बैलेंस इट आउट. तो it was a fabulous experience. Everyone who came on board also
artists, bro, like Nuclear, Nash, me of course, Sijja, like all these people who came on board, Taru, Delhi Sultanate, like BFR. आपको मैं बोलना चाहता हूँ, मैं रॉक क्लाइंबिंग करने जाता हूँ मांगर में. Oh yes, they are doing it on the 4th. 4-5 नवंबर को हो रहा है Yeah, अभी. yeah. बहुत सारे गाने सुने, हाँ बट आई इंटरव्यूड सरती कोरवर व्हेन आई हैड एन इंग्लिश पॉडकास्ट ऑनलाइन. हाँ यार उसका मोर अराइविंग, आई थिंक दैट्स द एल्बम. तरु और मेरा तरु क्या me and Sarthi, वर्स है ब्रो, पीछे Yeah, bro. लाइव जैज चल रहा. Insane. I think it's not as discovered, Yeah, because yeah, yeah. Sarthi has a league of his own. But what fire on that track, bro. मेरे को बहुत पसंद है वो वर्स. उस टाइम मैं बहुत एरोगेंट होता था. That time I remember like he sent me the mix and the drums were loud because he's a drummer. Of course, yeah. So drums were loud. I'm like, bro, can you like put the vocals up? He's like, no, like this is the fine. I like this volume. I was like, remove my verse. मैं अपने गाने पे डाल दो. That was actually a very nice verse from me. Yeah. And then we went back and forth. पहले मैं बहुत मुंह फट होता था bro. कुछ like for me it was not like I was not insulting anyone, but I was really direct, saving. मेरे दिमाग में मैं ऐसे सोचता था, I'm saving time for both of us. Sure. कि bro तू हटा देना वर्स, छोड़ना. अब तेरा बढ़िया ही है, ड्रम्स तो रख ले अभी. तो then he's like, fuck, ये क्या सीन है? I'm also new in the industry, I don't know how shit works. Yeah. तो उसने फिर ऊपर किया वापस से वर्स मेरा. And these kind of incidents, happened a lot, which where I came out as arrogant. And I'm not saying I'm not arrogant anymore. You motherfuckers, I'm still arrogant. Stay away from me. Throughout the King EP, there is one message only. मुझे अपने mental space चाहिए, मेरे से दूर रहो. जो मेरे को लगता है लिरिक्स के अंदर आ ही जाता है कहीं. जो सही बंदे रहते हैं ना ब्रो, वो जुड़े रहते हैं. जो सही बंदे होते हैं उनको समझ में आ जाता है मैं कैसा हूँ. एंड नेचुरली वी स्टे कनेक्टेड. और जो फुद्दू होते हैं वो तो फुद्दू ही. अब क्या बोले उनके बारे में. जब आपने स्टार्टिंग में बोला कि अपने गानों के माध्यम से आपको एक थेरेपी भी हो जाती है, तो ये चीज़ें जब आप क्लिक क्लैक गाते हो या फिर कल गाते हो या सुनो तब भी होती है कि दैट इज अ हार्डर, लैक ऑफ अ बेटर, थोड़ा सा एक इट्स अ मोर अग्रेसिव like phase of your musical journey. I don't want to put words, but ऐसा मुझे लगता है उन गानों में ये है बहुत ज़्यादा. तिलक नगर रहता था ना उस टाइम में, दिखता है वो. like, तब तक मैं निकला नहीं था. I didn't travel that much. I was in there. तो बहुत frustration थी. Unknowingly मेरे को ऐसा वो that was natural instinct, like me making that kind of music. Do you still put it in your set lists? No. No, never. None of the songs. None of Not the even G Mane Gandu. No. The OG गाना. यार वो that skit is so legendary. क्योंकि मैंने ना ऐसे बहुत सारे टाइप के बंदे ऐसे सुने हैं जिनका exactly ऐसा ही दिल्ली इंग्लिश का एक्सेंट होता है. ठीक है, सुनना bro. नहीं, that's you saying सुनना bro. It's like कि bro you'll get biggest exposure, will make you biggest star. और मैंने इतने लोग देखे हैं जो ये करते हैं. भाई तुझे मैं स्टार बना दूंगा, बस तू चलता रहे, तू पेमेंट मेरे साथ बेट लगा. पेमेंट मैं और इट इज सो ब्रो, लाइक आई स्वेयर समटाइम्स आई स्टिल लिसन टू इट और मेरे को ऐसा होता है कि गाड़ी थोड़ी वायलेंटली चला रहा हूँ. आई ऑलवेज प्ले जी माने गाना. इट्स सच अ गुड सॉन्ग ब्रो. या मैन, आई हैव टू रिविजिट दैट एल्बम अगेन. पर मेरा टेस्ट बड़ा, दैट वाज मी रैपिंग ऑन द बीट्स बेसिकली. वो दैट वाज दैट टाइम. आई विल गो बैक टू इट आफ्टर सम टाइम ऑफ कोर्स. अभी मैं I started my journey through King. जब मैं बहुत ऐसे जैज सुनने लग गया था और सुनता था पहले भी, बट लाइक आई स्टार्टेड मेकिंग इट. मेरे को एक अपना साउंड बनाना था. मैं लाइक स्लो गाने बनाऊंगा, मैं जो नहीं बनाने मेरे को बैंगर्स, लाइक फक बैंगर्स. क्योंकि उस टाइम चल रहा था लाइक वी लाइक लेट्स मेक बैंगर्स, तो क्लब में बजेगा. यू कैन डू मोर शोज विच इज ऑल्सो नाइस थिंग. यू कैन हैव लाइक 1-2 बैंगर्स हियर एंड देयर. जैसे किंग ईपी निकाली, फिर चिट्टा निकाल दिया. तो एक बैंगर है, चलो चल रहा है. बट मेकिंग दैट स्लो म्यूजिक वाज अ वाइब. तो मेरे को क्लासिक पे जाने में मेरे को खुद ऐसे लगता था कितना एग्रेसिव है यार ये आदमी, क्या हो गया ब्रो, इसको पानी पिलाओ थोड़ा, इसको बिठाओ. बट पीपल कनेक्ट टू इट बिकॉज एवरीवन हैव अ एग्रेसिव साइड. चाहे तुम अकेले में
एग्रेसिव हो कि इसकी तो मैं व्हाट इज द, जैसे लेड जेपलिन का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था पहले, कभी बहुत पहले, सारे बोलते थे सर एक बार स्टेयरवे टू हेवन हो जाए। ठीक है, तो ये कौन ले रहा था ये इंटरव्यू? ऐसे तो नहीं बोला हुआ। नहीं मतलब मैं एक उसको बार इंटरनाइज कर हाँ। रहा हूँ। वो जनता कह रही थी कि एक इनको लाइन हो जाए। एक सर स्टेयरवे टू हेवन आप कर दोगे ना तो हम सारे वो कर देंगे। तो फिर उस टाइम ना कि रॉबर्ट प्लांट ही सेड द लाइन, डज एनीबॉडी रिमेंबर लाफ्टर, व्हिच आई इंटरप्रेट इज लाइक कि भाई तुम हंसना भूल गए हो क्या कि तुम्हें यही चाहिए। एंड आई एम श्योर फॉर एवरी आर्टिस्ट देयर इज अ सॉन्ग जो आपने मन में करके बैंगर बना के छोड़ दिया, डन है, और लोगों की गुंजाइश होती है भैया ये तो बजेगा ही बजेगा। व्हाट इज दैट वन सॉन्ग दैट यू लाइक यार ठीक है बना लिया, ये लोग पागल है इसके पीछे, मैं नहीं हूँ। चिट्टा। ब्रो इतना फकलेस गाना था ना, उस गाने के अंदर 3 चीजें हैं, सैम्पल, ड्रम्स, बेस। मतलब मैं और भी बहुत एफेक्ट साउंड इफेक्ट्स डलते हैं और ये सब, यू नो, टू लाइक एम्पलीफाई द सॉन्ग, ब्यूटिफाई द सॉन्ग। जान दे, ऐसे ही डाला था मैंने वो। और म्यूजिक वीडियो तो बड़ी बड़ी सोच समझ के बनी हुई दैट्स है। आकाश भाटिया, टोटली, लाइक ही इज अ जीनियस। Okay. ही इज अ जीनियस। जैसे मैं म्यूजिक को देखता हूँ, मैं नहीं बोलूँगा कि वो वीडियोस को ऐसे देखता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से देखता है। ही इज़ वे बेटर, ही हैज़ अ वे बेटर आई देन मी फॉर श्योर। उसका हिज आइडिया वेन एवर ही कम्स ऑन बोर्ड, इवन लाइक जस्ट टॉकिंग, मैं उसको कोई गाना सुना रहा हूँ, ही ब्रिंग हिज एक्सपीरियंस। He's already visualizing what this song will look like. Yeah, he rather than asking me तेरे को इस पे कैसा चाहिए। And you like collaborators like that who have a sure Yes. certain vision? Always, मैं उन्हीं के साथ ही काम करता हूँ, rather be musicians और like even if it's like a, जैसे curate करना था, I was curating with Ayush, like he helped me, it was his idea, like his, मैंने अपने 10,000 घंटे डाल दिए इसमें, 10,000 hours I put, and now Akash also would, like he has put 10,000 hours in his art form. So we should, when we come together, it should be 10,000 and 10,000, not like मेरे 10,000 में से यूज करेगा। सर आप ही बता दो कहाँ लेके जाना है मेरे इस को गाड़ी नहीं को। पसंद हाँ। वो, मेरे को that's why I like people who have their own idea and they come in। मतलब मैं कभी नहीं सोच सकता था चिट्टा पे वो वीडियो, never in my wildest dreams। क्रेजी वीडियो, एंड स्पेशली किस तरह से वो लोगों की आंखों में ना दे आर पोजेस्ड बाय दैट माइंड वायरस, जो भी कुछ है, एंड हाउ यू एज द आर्टिस्ट इज स्मगली स्माइलिंग एट देम एंड लाइक इज इतना अभी भी चीजें मिलती है मेरे को उसमें, स्टिल टू दिस डे। आई रिमेंबर लाइक वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट कट मिला था मेरे को, एंड आई कॉल्ड आकाश, आई एम लाइक ब्रो व्हाट द, लाइक ये क्या है, लाइक आई नेवर एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दिस ग्लोबली, लाइक दैट वीडियो इज it's a global, like if you look at it, like the best videos, mixed media art with storylines, this is one of the best globally. I 100% agree because I've watched several music videos, but animated पे इतनी raw storytelling, not even close. Amazing. And Dev Jyoti as well, like he the animator on it, he co-directed, he had his own ideas. तो अभी भी मेरे को चीज़ें मिलती हैं, like some of the details he have put like in there, जैसे जो एनिमेटर्स की टीम थी, वो लोग भी हैं वीडियो में, they are taking a photo with me As fans जो as fans. हाँ So those are animators जो एनिमेट किया है जिन्होंने। crazy. So all these little nuances, you know, like I'm still finding it, like कि वो 1-8 लिखा हुआ है दरवाजे पे और देशद्रोही टाइप्स, लाइक वो सब लिखा हुआ है, these are the very fine details. So Akash always, like he's always thinking ahead, like how to amplify this rather than मेरा विजन लेके ही वो कर रहा है। So it's best man, like चिट्टा म्यूजिक वीडियो हैंड्स डाउन, अभी तक कोई छू नहीं सकता उसको देसी बम में।
आई रिमेंबर इंडियन अभी हिप हॉप में। मैं आपकी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा था परफॉर्मेंस चिट्टा में. आई थॉट कि अब गाना शुरू होगा, you're gonna start singing. The whole first verse is sung by the audience. यस सर. And you're not even like, woo! It was like, just standing there, just observing. Do you sometimes zone out on stage? Like No, no, no. performing? No? आई आई जोन इन, आई डोंट जोन आउट. मतलब मैं आई वेयर लाइक ग्लासेस, मैं काले चश्मे पहन के आंखें बंद कर लेता हूँ कभी कभी. लाइक समटाइम्स आई एंजॉय द सॉन्ग एंड लाइक फीलिंग द वाइब ऑफ द पीपल. लाइक आंखें बंद करके मैं गा रहा हूँ अपने जोन में, एंड लाइक जब मैं आंखें खोलता हूँ तो लोग भी उतना ही वाइब में है. लाइक ये लाइक दिस इज सिक. So how did you learn stagecraft? जैसे आपने पहले बोला कि जब उस टाइम पे आपके मेंटर के साथ आप करते थे तो आपने कई बार ज़्यादा ओवर हाइपिंग कर दी, and like you know like you won't. How did you become a natural on stage? Man, he left, like my mentor left for Sudan. He's half Sudanese. And he's like, now you do this shit on your own. और उस टाइम पे हॉस्कास में कोई शोज़ नहीं देता था रीजनल लैंग्वेजेस को, ओनली इंग्लिश वॉज अलाउड. बड़ी मुश्किल से हमें शोज़ मिलना चालू हुआ. देन आई स्टार्टेड हाइपिंग विद अ डीजे, लाइक एज एन एमसी. हाइपिंग का मतलब ऐसे होता है जैसे डीजे मोसिटी करता है, व्हाट इज अप न्यू दिल्ली. या ओके. सो आई वाज विद वन, लाइक मेरे को रेजिडेंसी मिल गई एक डीजे के साथ. लाइक आई वाज डूइंग एवरी वेंसडे इन रास्ता. फिर थर्सडे मिला, फिर फ्राइडे मिला, फिर एक टाइम पे 8 शोज हफ्ते के चल रहे हैं, लाइक अब फिर मैं और लोगों को लेके आ रहा हूँ. So as a hype man, you're also responsible for bringing people in. Is that your job or like आप खुद नो से नो लेके नो आ रहे नो हो? और मतलब मैं और रैपर्स को लेके आ रहा हूँ. अच्छा अच्छा अच्छा. लाइक कि मेरे पास अब काम ज़्यादा हो गया है, तो मैं इस क्लब में कर रहा हूँ, सामने वाले क्लब में एक और रैपर को दिया हुआ है मैंने कि तू इसमें कर, यू नो. सो दैट वाज द थिंग एंड वी वर मेकिंग गुड मनी. सो दैट वाज द टाइम वेयर आई लर्न लाइक क्राउड, how to gather the crowd. And before this I used to MC in this breakdance battles, b-boy b-girl battles. वहाँ पे तुम चूतिया नहीं काट सकते किसी का, बिकॉज ऑल ऑफ द क्राउड इज 500 लोग हैं, 500 लोगों को हिप हॉप पता है. So चूतिया नहीं काट सकते मतलब कुछ भी रैंडम बकवास नहीं कर सकते कि ये रैप है. हाँ, you have to be very on point because you have to be a real MC. So your skills are built there. It's not built in the bedroom. No. My life skills are built in life. Like I had, when I was doing these MCing gigs, I had only 3 knobs. एक हाई, एक लो, एक वॉल्यूम. ठीक है, अब यही है मेरे पास जिसमें मेरे को अपनी वॉइस फिक्स करनी है. और यहीं से करना है जो करना है भाई. कोई साउंड चेक नहीं है. हाँ, वो गाना बज रहा है, मैं गाने के ऊपर से कर रहा हूँ, बीच में उसका गाने का व्हाट्स अप न्यू दिल्ली. कोई फ्लैंजर नहीं लगा सकते अपनी आवाज में, कुछ नहीं कर सकते, कोई बोर्ड नहीं है सामने, कोई साउंड चेक नहीं है, यू नो. सो वहाँ से इतने छोटे से व्हेन आई गॉट एवरीथिंग इट वाज इजी फॉर मी लाइक टू लाइक मारुति चला ली, अब तो ऑटोमेटिक है, you know? इसमें तो पावर, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग है, पावर भी नहीं है अब. So you got the fundamentals right कि yes शुरू से. And say when you're in a crowd and आपने बोला कि मेरा कितना भी dead हूँ, I can still go out and perform. Can you enter a kind of dance with the crowd जैसे आप कुछ फेंक रहे हो और वो वापस आपको रिसीव हो रहा है? It's almost like जैसे for example आपने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि चिट्टा आपको इतनी स्ट्रांगली रिस्पॉन्स मिलेगा, राइट? दैट इज द ऑडियंस थ्रोइंग इट बैक एट यू, वी वांट दिस मोर, एंड आपकी कही हुई बातों को लोग पकड़ रहे हैं, कल्चर में ले रहे हैं, वापस आपकी तरफ थ्रो कर रहे हैं, राइट? व्हेन यू आर डूइंग अ कॉन्सर्ट, राइट, आप डू यू डिलिबरेटली ट्राई टू सेंड एनर्जी इन अ डिफरेंट वे कि ऐसे ये करूँगा तो ये होगा, और इज इट कंप्लीटली फ्लूइड? व्हेन इट्स माय ओन क्राउड, लाइक जैसे अभी सेल्फ प्रोड्यूस शो है कि मेरे को पता है यहाँ चाहे 20 लोग आए अपने हैं, वहाँ तो फटती है एनर्जी. वहाँ मैं लेके जाता हूँ. एवरी टाइम आई टेक लाइक अ नाइस सेट, मैं पूरा फ्लो बना के लेके जाता हूँ. क्योंकि इन 20 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, जितने लोग हैं इनको पूरा सेट मालूम है. दैट्स व्हाई दे आर देयर. तो मैं फिर वो उनके मनोरंजन के लिए वैसा सेट लाइक इस गाने के बाद ये डाल दिया, फक, लाइक तो क्रेजी लग रहा है, यू नो, लाइक दैट काइंड ऑफ रिएक्शन. आई काइंड ऑफ एंटिसिपेट कि फक, लाइक दे पीपल पुट अप स्टोरीज कि ब्रो दिस ट्रांजिशन वाज सिक, or they're hooked in like deep fans. हाँ, then they also create playlist. जैसे मैं सेट की प्लेलिस्ट बनाई है कि ये गाने अच्छे लग रहे हैं साथ में, यू नो, लाइक दिस. And sometimes like when I know it's not my show,
जैसे भी 50 सेंट के लिए करना है. I was gonna say. तो तब मैं एक अलग सेट लेके जाता हूँ वेयर आई नो दिस इज नॉट माई ऑडियंस, आई हैव टू कैप्चर देयर अटेंशन, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बहुत साल. यू नो व्हेन आई वाज विद द डीजे नोबडी न्यू मी बैक देन कि ये कौन है मैं जो सरदार चढ़ा हुआ है यू नो स्टेज पे. तो मैं करता था फिर तब हाइप. तो आई नो हाउ टू लाइक गैदर अदर पीपल्स ऑडियंस. तो आप क्या करोगे? Would you go for the bangers, proud favorites बजाओगे? डेफिनेटली बैंगर्स. Yeah. बैंगिंग सेट. And how would you introduce yourself? Hi, I'm Prabh Deep from New Delhi. Obviously, big fan of. I want to see that show, by the way. If I go and like else, because you know, 50 Cent is also so cool. 50 Cent की वो 50th law किताब लिखी है Robert. Like he's one of the वो ना जो rap moguls जो transcend कर जाते हैं from just like just an artist to a legend. Of course, man. Like he opened so many doors. Just like he actually showed people like you can. Artists especially that you can be a businessman and make a life out of it and kill it like properly. Uska wo power hai. That series and the book also that he released, like, and couple of other films he produced and the water business and like different kind of stuff, you know, still selling songs, doing like the last tour, still making money off it. Very smart, like he knows, and that's inspiring, you know. Like अभी हम लोग मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कहाँ रियलिटी में मैं कहीं नहीं हूँ देखा जाए तो. Where if I wanna go out and if I say today that I am not gonna work from today onwards, I won't be seen. Exit. I can't sustain for more than 2 years with the kind of shit I have made. पर उस भाई ने कर लिया है, बहुत पहले कर लिया था. So that was the inspiration की, and especially the final lap tour exit, इसी के लिए तो मैं काम कर रहा हूँ. एग्जिट लेने के लिए तो काम कर रहा हूँ भाई. कब ख़त्म होगा ये सर्कस और कब मैं ऐसा एक बढ़िया से आइलैंड पे बैठ के ना कहीं पे चिल मार रहा हूँ कि आइलैंड पे तो चले गए आप ऑलरेडी. हाँ, बस थोड़ा सा और बाहर निकलना कि अच्छा, एक आध मालदीव्स, एक आध पे मिल मतलब जाए. गोवा कहीं भी मिल जाए ब्रो. आइलैंड तो मतलब एक पहाड़ हो आइलैंड पे, उसके ऊपर घर. But don't you think that something inside you is still like a stronger part of you जो आपको फिर भी कन्विंस करेगा नहीं यार गाने तो और बनाने हैं, आना तो गाने तो एंड मरते दम तक बनेंगे. हाँ, गेम नहीं खेलूंगा. ओके, आई सी व्हाट यू मीन. हाँ, गाने तो हमेशा बनेंगे. हर इंडस्ट्री में कोई ना कोई खेलना पड़ता है. लाइक मैं गेम में हूँ, फुल ऑन हूँ ब्रो. फुल ऑन गेम खेल रहा हूँ मैं. जिनको लगता है कि मैं बाहर हूँ, लाइक दे विल सी, एवरीवन विल सी इन कपल ऑफ ईयर्स. मेरा अपना तरीका है खेलने का, तो ज़रूरी नहीं है मेरे को दिखाना ही है हर बार अपने मूव्स. Like I move in silence always. किसी को नहीं पता. जब हो जाएगा मूव तो लोगों को खुद पता ही लग ही जाता है एक टाइम पे. तो अभी तक खेल रहा हूँ मैं. फिर लोग बोलते हैं यार आई हैव ऑलवेज एक्चुअली सपोर्टेड प्रभु. ऑलवेज ब्रो. मैंने उसी दिन देख लिया था जबकि जिस दिन आई थी ना गाने, मैंने तब से बोला था ये स्टार बनेगा. सारे कमेंट्स देखता हूँ गांडू लोगों में तुम्हारे. हाँ, एंड लाइक नाउ आई डोंट गेट अफेक्टेड बाय इट अ लॉट, यू नो. मैं बस हंसता हूँ कि तुमने खुद तुमने मुसीबत मुँह ले ली. लाइक मैं शायद तुम्हें काम दे देता अगर तुम मेरे से बना के रखते तो, क्योंकि मैं तो टॉप पे बैठने वाला हूँ भाई, आज नहीं तो कल. समझ रहे हो? तो तुमने अपना ही खराब किया, मेरा क्या जा रहा है? मेरा सीन सॉर्टेड है, आज नहीं तो कल. So you've put out 2 songs from King is Back. Yes sir. On YouTube. Is that an upcoming EP that we can expect fully launch? Yes sir. क्या सीन है उसका? बस जा रहा हूँ अभी गोवा. अच्छा, वापस. आई थिंक जब तक ये पॉडकास्ट आएगा तब तक वो रिलीज हो चुकी होगी. Crazy. तो हम उसको ऐसे ही अलाइन कर देंगे so it releases with the King EP. No, because when I went to a YouTube channel I was like, अरे यार ये कैसेट तो मैंने पहले भी देखी है. ये तो उसी एल्बम से जिससे मैंने प्रदीप के गाने पहले डिस्कवर करे थे. And I started playing them. I was like, King is back. So something is coming. But then I went to the Spotify and I couldn't find it. Yes. So I clearly realized this is like drops for the full thing. हाँ, वो पिछली किंग के साथ भी ऐसे ही किया था. एक्चुअली किंग जैसे मैंने बताया कि पहले जब आई थी
तो आई परफॉर्म्ड इट ऑल्सो. आई थिंक इट वॉज TNS का कोई एल्बम लॉन्च था हमारे लेबल मेट का एल्बम लॉन्च पे मैंने परफॉर्म किया. एंड द रिएक्शन वॉज, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, लाइक व्हाट आर दीज सॉन्ग्स, दिस वॉज आउट, माया अमर, आई प्लेड इट. और कोई रिएक्शन नहीं मिला उस पर. देन अगेन लाइक पीपल पिक्ड इट अप आफ्टर अ ईयर. And this is what's gonna happen with King Returns as well. लगेगा लोगों को डाइजेस्ट करने में कि ये नया साउंड है. लाइक फॉर मी ऑल्सो इट्स अ न्यू साउंड. तो वो होता है लाइक पकने में टाइम लगता है थोड़ा. तो ये I'm gonna give 1 year to this for the people. बट उसके बीच बीच में और भी अब तो धड़ाधड़ म्यूजिक है. लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. Yes, sir. आई विल से मैं जब भ्रम डिस्कवर कर रहा था मैंने कहा यार ये तो फुल लेंथ एल्बम है भाई, ये व्हाई डिड आई नॉट हियर अबाउट दिस डिस्पाइट फॉलोइंग द आर्टिस्ट, लाइक व्हाट इज हैपनिंग. बिकॉज मैंने अपना काम कर दिया था. आई नो व्हाट यू मीन. बहुत लाइक इट्स one would be surprised that you put out like a project in every 2 years. Just like a pretty solid like voluminous output. लोग usually बहुत टाइम लेके बनाते हैं. इस साल के अंदर ही ब्रो पता कितने गाने रिलीज कर चुका हूँ अभी मैं. भ्रम डीलक्स आ चुकी है, 13 गाने थे उसमें with all the collaborations. Pra EP. That was 4 tracks, 17. Then I went independent. I released Thappad. Then these two. So 20 songs already. And you're sitting on 2 full length albums still. 3. 3. 1 EP and 2 albums. Okay. उसमें से एक में बहुत सारे गाने हैं. मजे आने वाले हैं. It's going to be an exciting time. As far as what do you think you're going to say to 50 Cent when you meet him? Man, I have his vinyl. मतलब मेरे पास उसका नॉट फॉर सेल वाइनल पड़ा है एक बहुत पुराना, जो उनका आई थिंक टेस्ट प्रिंट था, जिस पे कवर भी आधा ही बना हुआ है. एंड दैट इज दैट होल आर्टवर्क इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर. तो मैं वो लेके जाने वाला हूँ. पहले तो वो साइन करवाना है मेरे को. देन आई जस्ट वांट टू टॉक टू हिम लाइक फॉर just want his 5-10 minutes कि like give him my respect कि देख तूने वहाँ किया और हम यहाँ पहुँच गए हैं. like he plays a huge part in this whole circle that's ये जो जितना यहाँ पहुँचा है, he's a key member in all of this. तो उसके लिए thanks भी बोलना है मेरे को उसको. And like I want to get his advice on some shit, some gangster shit that I'm gonna pull on some nasty motherfuckers. What is your proudest moment, bro, so far in your life? I think अभी तक की proudest moment थी when I got my mom dad to see my show in Delhi, like in front of like 3,000 people. फुल बैंड के साथ किया था मैंने. एंड माई मॉम क्राइड फॉर द होल सेट. माई डैड खड़े थे? नहीं दे आई गॉट देम अ स्पॉट लाइक इन द मिडल ऑफ द ग्राउंड, चेयर्स वगैरह लगा के. एंड दे वर वॉचिंग लाइक बेस्ट स्पॉट, लाइक साउंड विजुअल सब क्लियर थे उनके लिए. सो दे सॉ दैट वन. और मेरे डैड व्हेन आई परफॉर्म जी माने एंड ही इज जस्ट लाइक अरे यार मेरा पुत्र My manager told me, he's like, bro, जब तूने जी माने गया तेरा डैड ऐसे. यार वो तो खुद भी देखते हैं कि और लोग भी देख रहे हैं. मैं कैसे I can't sign off on this कि यार गाली, but it's that's very nice of you, bro. That was really they were really proud of it. फिर उसके बाद तो आते रहते थे. My mom she attended that only one, but my sister she comes to every show. She's like मेरे को आना है. मैं बोलता हूँ नहीं आएगी तू, लाइक तेरे को आना है. और वो 2 लोग और लेके आती है साथ में, मेरे कजन्स आ जाते हैं कभी. इट्स गुड लाइक फन वाइब, फैमिली होनी चाहिए कॉर्नर में कहीं पे. देख रहे होते हैं लाइक सिक. बढ़िया यार. So I when we decided to do this, I was through the roof because it's one of the interviews. And this interview ऐसे बातचीत ज़्यादा बोलूँगा. I've looked forward to for years, and I think I'm so glad that all the preparation I did was just blown away by आपने जो बातें करी हैं.
I think I just expected this. You're just as authentic in person. यही थी ना, मतलब मैंने कहा कि मैंने आपके क्वेश्चंस खा तो नहीं लिए ऐसे ये तो सब ना ये इंटरव्यूअर नाटक करते हैं कि कोई बहुत भारी क्वेश्चन लेके आएंगे हम और कोई ऐसी बात करेंगे जिससे कि ना उससे दूसरे इंसान के अंदर तरंगे दौड़ जाएं इनसाइट्स की, कि प्रभदीप ने जिस तरह से ह्यूमन कंडीशन को डाइसेक्ट करा है ना, ऐसा कुछ नहीं होता. आई थिंक मैं जनरली इसलिए भी खुश था ना, बिकॉज इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स वेयर व्हेन यू spend a pivotal part of your life, particularly as a fan, I can say, looking for कि मैं कहाँ belong करता हूँ, तो किसी के आर्ट ने मेरे को एक belongingness दी. हम जो है किंग ईपी को गाड़ी चलाते हुए, मैं बोल सकता हूँ थोड़े थोड़े नशे करके हम सुनते थे. और क्या होता है कि when you drop your friends and then you listen to King EP alone, yes sir, you know, and that cemented in my head like nothing else. वो बहुत हिट करता है. and then it like for me also, man, like these albums were phases in my life, and when I'm done like making music, like जब मैं गेम खेलना बंद कर दूंगा, exit ले लूंगा, because I've been real and I will be real with like my craft. I'm not making it to impress anyone. और मैं अपनी जिस state of mind में हूँ मैं वो बता रहा हूँ. It will be a storyline as well, like of my life. Like this is what I leave behind for my kids, my grandkids, you know, to have like hamare, like where we come from kind of situation for my next generations. और मैं कहाँ से आ रहा हूँ वो भी मैं आगे बताऊँगा अपने गानों में. So it's almost like my life in it. तो अब मैं phases जब मैं सुनता हूँ King EP दोबारा से, that person is gone. That phase is gone. Even ताबिया वाला आदमी भी जा चुका है. Gone. I'm a new, like भ्रम वाला अलग था, अभी एक अलग है. Different, whole different person altogether. So जब मैं सुनता हूँ and I go back and I learn from it. खुश रहो, प्यार दो, दिन नहीं खराब करना किसे दिल ही. And मतलब वो मेरे को ऐसा होता है, चूतिया तेरे को पता है. Like तूने ही बोला है, you know, and I'm still like in मैं बोल रहा हूँ कि अंदर जवाब ने अंदर संसार है, अंदर है शांति, बट मैं बाहर की चीज़ों में ट्रिप मार रहा हूँ. तो आप में वो सेल्फ अवेयरनेस है ना, आप ये चीज़ बोल सकते हो. अब आप बोलो नहीं जी, जो मैं एल्बम में बोला है हूबहू मैं वो हर वक्त हूँ, that's going to be a lie, because human condition इतनी वास्ट होती है, you can't be those things. ये मैं अपने फैंस को भी बोलता हूँ, ब्रो, कल को मेरा आइडियोलॉजी चेंज हो जाए, इसके ऑपोजिट हो जाए एकदम, तुम मेरे को गाली नहीं दे सकते, क्योंकि मैं फिर तुम्हें गाली दूंगा अगले गाने में. You should have the ability to change your mind in public. Of course, right? And it has to be. It's condemned. मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ भाई कि देख, तेरे से मांगा, इंटरनेट मेरा, स्टूडियो मेरा, मैंने पैसे भरे सारे, ठीक है. मैं नहीं बोल रहा, लाइक वो होता है कि फैंस ने हमें बनाया है, मैंने फैंस बनाए हैं अपने, मैं बोल सकता हूँ छाती ठोक के, बिकॉज लाइक माई इंटेंशन स्पेशली राइट नाउ इज टू हेल्प यू मदरफकर्स. लाइक मैं चाहता हूँ कि तुम लोग ठीक हो, मैं चाहता हूँ मेरे फैंस हो कि ब्रो सुबह उठें और गांड फाड़ रहे हैं कुछ. दे आर मेकिंग अ चेंज इन द वर्ल्ड, दे आर मेकिंग अ डेंट इन द वर्ल्ड. मतलब मैं नहीं कर पाया वो करने चाहिए. दैट्स माई विजन फॉर देम. तो मैं क्यों नहीं ऐसे छाती ठोक के बोलूँगा कि हाँ, लाइक आई एम अ पार्ट ऑफ योर जर्नी एज मच एज यू आर पार्ट ऑफ माइन. इट्स बोथ वेज. लाइक जैसे तुम मेरे को बना रहे हो, मैं तुम्हें भी बना रहा हूँ, बिकॉज आई एम गिविंग दैट मच एफर्ट इन माई म्यूजिक. So that's what I want from my fans also. Like if I change, shift my ideology, just understand I'm going through something and I experience something, you know, कि ऐसा हो गया. और बीच बीच में चुतियाब होना भी जरूरी है. तो थोड़ा बहुत चटकना अच्छा रहता है. It's good for the soul. हाँ. मुझे भी ऐसा लगता है ना, जब कुछ समय से ऐसे नहीं हो रहा होता कि ऐसे गाड़ी स्टेबल जा रही होती है, ये नहीं है कि उसको खराब करो, पर थोड़ी बहुत यार, थोड़े जैसे वो पानी में स्किपिंग स्टोन्स मारते हैं ना, तो थोड़े वो रिपल्स आते हैं, वो भी जरूरी होती है. यस यस, डेफिनेटली. आई वांट टू आस्क यू वन फाइनल क्वेश्चन, ठीक है, एंड देन हम इसको समाप्त कर सकते हैं. यार मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे मैं हूँ, मैं तो आई स्टार्टेड एज अ राइटर, राइट, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग लाइक हाउ टू बी एन इंटरनेट राइटर ऑन द इंटरनेट, डिफरेंट चैनल. This picked up. I really started enjoying talking to people, and I built this podcast. Just continuing building this, will probably do this forever, right? और चीज़ें करता रहूँगा. But it took me a long time to start getting comfortable with telling my own stories. कि देखो जी, मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ है, ऐसे.
और मुझे लगता है कोई भी आर्टिस्ट अपनी वल्नरेबिलिटी अपनी छाती पे तो रखता ही है, अपनी एल्बम भी रख देता है, जी मेरे ये 2-3 दुख हैं, ये 2-3 सुख हैं, ये मैंने सीखा है. टू कॉन्स्टेंटली बी सो नेकेड अबाउट योर मोस्ट इनर फीलिंग्स एंड थॉट्स, हाउ डज वन गेट देयर? मतलब आपको ऐसा नहीं लगता यार ये मेरी इनको मेरे बारे में सब पता है? नहीं पता है किसी को मेरे बारे में सब, लाइक इतनी एल्बम निकालने के बाद भी. हाँ बहुत कुछ है ब्रो. लाइक आई हैव अ साइड टू मी विच इज जस्ट फॉर माई फैमिली एंड फ्रेंड्स, विच यू नेवर सी. आई एम वेरी पर्सनल. जितना जितना भी मैं पब्लिक आ जाऊँ, देयर इज अ साइड ऑफ मी विच इज I am different with my mom, my sister, my partner, you know, and my close friends. कि वो अलग ही है. That's where I'm not an artist. That's where I'm just a human being. और वो बहुत natural है. Like I can't be like that on my shows. Naturally एक अलग इंसान बन के आ जाता हूँ मैं बाहर. So you can separate the performer and the person. Yes, definitely. तो and I don't really care about the judgment anymore. पहले मैं बहुत डरता था ब्रो कि लोग जितना मर्जी मैं बोल लूँ कि वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी जहाँ लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचे कहेंगे वाला लाइन इज अ क्लीशे. बट मेरे आई ऑब्जर्व्ड माई सेल्फ, आई कॉट माई सेल्फ वरिंग अबाउट इट. लाइक आई कॉट माई सेल्फ गेटिंग अफेक्टेड बाय इट. कि किसी ने कुछ मेरे बारे में बोला और बहुत सारे लोग ओ शिट ये तो पब्लिक हो गया अभी मेरे बारे में कुछ, अभी लोग क्या सोचेंगे. लाइक डर जाता था मैं एकदम से. लाइक आई बिन थ्रू अ लॉट ऑफ अकेले अकेले में ट्रिप खा रहा हूँ भाई मैं अपने कमरे में कि चो ये क्या हो गया. और फिर मैं देख रहा हूँ भाई इससे बड़ी बड़ी चीज़ों से लोग गुजरे हुए हैं. लाइक कोई किसी घर में जो खाना नहीं है, लाइक दे आर ट्राइंग टू गेट अ नेक्स्ट मील. That is way more important than इतना सा गॉसिप. देखा जाए तो छोटा सा गॉसिप ही तो है. सो फॉर मी इट्स नाउ इट्स लाइक बोलते रहो. हमारे यहाँ पे ना वही वाला जो मेरा कज़न है जिसकी वैन है, सो ये हैज़ अ वैन. फिर उसके बाहर एक शौरमा बनाता है और मेरा कज़न बनाता है पिज़्ज़ा. और अंदर एक और दुकान है ऐसे ही फॉर कोल्ड ड्रिंक एंड ही इज अ टेलर ऑल्सो एंड ही सेल आइसक्रीम. लाइक वियर्ड, लाइक वेरी वियर्ड कॉम्बिनेशन. तो उस अंकल की ना बहुत लेते हैं सब. लाइक दिस शौरमे वाला मेरा भाई और वैन वाला, लाइक ये सब लोग दे हैव देयर ओन थिंग गोइंग ऑन. इंटरनल जोक्स, शॉपकीपर्स एसोसिएशन. हाँ इंटरनल जोक्स चल रहे हैं. A lot of customers also participate in it, you know, like in these conversations, and बहुत लेते हैं. पर वो बंदा he's a sport, like he never I never see him like तुमने मेरे को ऐसा बोल दिया. He's always with a smile. कह रहा बोल ही जाओ, अपना ही मुंह गंदा कर रहे हो. मेरा किया है ना. तो मेरे को बड़ा सही लगा. मैंने कहा ये this is the approach. Like he's not getting affected by, bro, like nasty, like my cousin like these shopkeepers, like they were nasty on him. Like this is street style. पूरे दिन, क्योंकि साथ ऐसा भी नहीं ना कि दूर से आ रहे हैं बोलने के लिए. चौप मतलब जब तक दुकान खुली तब तक बोलेंगे. चलते चलते बोलते हुए जा रहे हैं उसको. वो कहीं से अपना कुछ करते हुए आ रहा है. समझो उसका भी माइंड सेट. लाइक ही इज कमिंग फ्रॉम समवेयर. मेरे सामने वो स्कूटर से उतरा है, बस उसको रोस्ट कर दिया गया. यू नो, उसको रोस्ट कर दिया गया. तो बीवी से मार खाता है. कह रहा है बोल ली जाओ, मनुदा फर्क ही नहीं पहनता. यू नो लाइक, और उसकी बीवी सामने बैठी है. बताओ. सो फॉर मी आई वाज लाइक भाई ये है भाई स्टेट ऑफ माइंड मेरा. वो ना आई एम काइंड ऑफ देयर नाउ. बोल ली जाओ, कोई सीन ही नहीं है. जब मेरे को जवाब देना होगा मैं दूंगा जवाब. जितनी बातें लोग बोल रहे हैं सबका जवाब दूंगा. पर अभी मेरी लाइफ में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे को सॉर्ट करनी है. एंड दीज पीपल आर नॉट इम्पॉर्टेंट राइट नाउ. Amazing, bro. Yeah. It's been an honor to talk to you today, bro. Cheers, man. Lovely. ये मेरा, it was a very natural conversation. Thank you to you as well for. Thank you, man.
आने के लिए उबर में और ये करने के लिए। नई गाड़ी ली थी भाई ने। हाँ वो देखा था मैंने, 3 दिन पहले ही गाड़ी लिया, कह रहा उसपे भाई वो लगे हुए थे ना रिबन। हाँ एंगेजमेंट। भाई कांग्रेचुलेशंस यार, उबर गो पे नहीं मिलती इतनी बढ़िया गाड़ी। नो बट सीरियसली ब्रो, मैंने जैसे पहले बोला था ना, थैंक यू फॉर डूइंग दिस एंड दिस इज अ कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड बीन वेटिंग फॉर इयर्स, इट फाइनली हैपेंड, होपफुली मैनी मोर। जब तक एल्बम आती रहेंगे, आपको पता है आप दोस्त तो आ ही सकते हो उसके बारे में बात करने के लिए, स्टेप बाय स्टेप। दोस्त है भाई। अमेजिंग ब्रो, अमेजिंग। ठीक है, यू कैन ऑब्वियसली, इफ यू डोंट नो हु ही इज ऑलरेडी, यू कैन फॉलो प्रभदीप म्यूजिक ट्विटर पे, ऑन इंस्टाग्राम एज Prabdeep म्यूजिक, everywhere प्रभदीप म्यूजिक। ठीक है, bank account Prabdeep Music, send me some money if you want. yeah, it's goa@prabdeepbank.com. ठीक है, but this was Dostcast with Prabdeep and we'll see you all on the next episode. Don't forget to subscribe. Take care. Bye bye. Sayonara.